व्हाट एग्जैक्टली मोर सिंपलर डेफिनेशन जो हम लोग बोल सकते हैं हमारे लिए, ठीक है, तो वो है someone who has the money to invest now or will be able to generate it over the period and is seeking guidance from you or us to invest this money to achieve his life's financial goals. Do you agree? Do you agree? Great. Yes, yes, yes. Okay. सही है. Yes. लेकिन इसका और एक एंगल भी है. This is not the only thing. This is one part of the definition. The other part of the definition will be, and in the process helps us achieve our financial goals through earnings from him. अभी आप बताइए मेरे को, अभी is it complete or not? Do you agree on this definition? Yes, great, complete, wonderful, yes, true, 100%. तो एक बात है क्लाइंट इन्वेस्ट कर रहा है, वो अलग बात है हमारे थ्रू, लेकिन उसकी वजह से हमारे गोल्स और हमारी अर्निंग है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? ग्रेट. तो आगे चलते हैं. सो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने बेसिक, लाइक आई सेड, हम लोग बेसिक डेफिनेशन से शुरू करने वाले हैं हर चीज में. इसमें हम लोग को क्लैरिटी बहुत सारी आने वाली है. आप एट द एंड मुझे बता सकते हो अगर आपने और कुछ भी आपने देखा है, सीखा है, समझा है, मुझे भी समझ में मिलेगा विद अवर इंटरेक्शंस. Great. The next important question is, why did our clients hire our services? Can you tell me something? Can you tell me something on this? Why do you think the client has hired our services? For proper guidance, fulfill their goals, knowledge, he sees us expert, to make money, trust, time, our skill, trust advices, professionals. कुछ कुछ चीज है, कुछ कुछ नहीं है. टू बिकम आत्मनिर्भर इन फाइनेंस, अगर आत्मनिर्भर बनना है वो एक बात देखने की है. सबको बनना है, हमको भी बनना है, राइट? बट आर वी इन्वेस्टिंग और आर वी टेकिंग समबडीज गाइडेंस इवन दो वी आर इन्वेस्टिंग, राइट, फॉर आवर गोल्स? नहीं, राइट? Why did our clients hire our services? ठीक है, देखते हैं, चलो. ग्रेट. बिकॉज दे नो, दे वांट, दे डोंट नो दिस. ग्रेट. तो बेसिक पार्ट है, he feels, because he feels that investment guidance and execution is our profession or is your profession. Agreed? Agreed? अगर एग्री करते हो तो यस लिखिए. Great. Second, because he feels you are supposed to know more than him or her. Agreed? अगर आप एग्री कर रहे हो जो मैं बोल रहा हूं तो प्लीज यस लिखते जाइए, मुझे समझ में आएगा कि वी आर इन द सेम पेज. अगर नहीं समझ, अगर इफ यू डोंट एग्री प्लीज से नो एंड थोड़ा सा बताइएगा क्यों नहीं. वी विल डिस्कस मोर ऑन दैट आल्सो. ठीक है. वन मोर थिंग, because he thinks you can devise better investment strategies than him or her. सही है? एग्री करते हो? Because he thinks you can devise better investment strategies than him or her. नहीं? दीपेश नो बोल रहे, ठीक है. यस यस, हाँ यस, ओके, ग्रेट. Because he thinks you can review and redirect the investments better than him or her. एग्री करते हो? ब्रॉडली आप ये 4 पॉइंट्स से एग्री करते हो? दीस आर द बेसिक पॉइंट्स. बहुत सारे और भी पॉइंट्स आएंगे, लेकिन ये बेसिक पॉइंट मैंने लिए हैं अभी. डू यू एग्री विद दीस 4 पॉइंट्स? Because he feels, yes, we will not think sentimentally because it is not directly our money, because we are actually managing his money. So whenever it is regarding to our money, our own thing, we will become sentimental, and that is why somewhere it is also said it is always better to have some investment advisor for our investments. So even then we should not invest for our, or we should not make decisions too much for our own money, because we will also become emotional towards our money. थोड़ा ज्यादा हो गया, चलते हैं आगे. So we have understood now why we should, or why are clients hiring. But now the next question for today's topic also is, who are your top clients then? आपके पास 100 clients होंगे, 150 clients होंगे.
250 क्लाइंट्स होंगे, 500 क्लाइंट्स, लेकिन उन सब में से आपके टॉप क्लाइंट्स कौन है, देखते हैं। सो देयर इज अ Pareto's प्रिंसिपल which actually defines the rule 80-20. आप लोगों को, बहुत लोगों को मालूम भी होगा. It is a common phrase which we normally know about 80-20 rule more commonly. बट ये जिसने डिवाइस किया था वो परेटो, सो उनके नाम से ही ये प्रिंसिपल जाना जाता है 80-20, बिकॉज इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आपके टॉप 20% जो क्लाइंट होंगे, दैट विल बी मोस्ट लाइकली द clients who actually contribute around 80% generation of revenues, and normally they are your top 20 clients. Broadly अगर आपके सारे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने यहाँ पे एजीएम नहीं लिखा है, मैंने रेवेन्यूज लिखा है, क्योंकि यू मे बी डीलिंग विद मल्टीपल प्रोडक्ट्स आल्सो, इसीलिए मैं सिर्फ एजीएम नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली रेवेन्यूज लिख रहा हूँ. आर यू ओके विद दैट? यस. सो ब्रॉडली हम लोग को ये आइडिया तो पता है कि 80-20 प्रिंसिपल है, बट अगर क्या आपने एग्जैक्टली चेक किया है कभी कि एग्जैक्टली आपके पास अगर 200-500 क्लाइंट है, उसके टॉप 20%, दिस रेशियो मे नॉट बी एग्जैक्टली 20% फॉर एवरीबडी, ये रेशियो 15% से 25% के बीच में रेंज होता रहेगा. बट क्या आपने कभी चेक किया है कि एग्जैक्टली आपका जो टोटल रेवेन्यू शेयर आता है वो कहाँ से आता है, कितने क्लाइंट से कौन सा कितना रेवेन्यू आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्यों? क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा आपको, आगे देखते हैं. अभी आपने डिफाइन तो कर लिया गई 80-20, चलो मैंने 20% क्लाइंट भी देख लिया है, लेकिन इनको रखना क्यों जरूरी है? इनको रखना बहुत जरूरी है. क्यों रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द ट्रस्ट इज ऑलरेडी बिल्ट इन. वो आपके क्लाइंट तब बने जब उनको भरोसा हुआ आपका पैसा मैनेज करने के, आप मेरा पैसा अच्छे से मैनेज करोगे, तब जाके मैं आपका क्लाइंट बना, राइट? यू हैव इनिशियली मेट them 2-3 times, you showed your thoughts and processes, why you do what you do, how you do and all those things. तो आपने वो एक स्टेज बना के रखा है, टाइम इन्वेस्टमेंट किया है आपका, उसने भी देखा है, एंड ही फेल्ट इट एंड ही हैज एक्नॉलेज्ड कि हाँ आप मेरे लिए ठीक कर सकते हो. इसने आपने अपना एक ट्रस्ट बिल्टअप कर लिया ऑलरेडी, और उसके बेसिस पे ही वो आपका क्लाइंट बना है, राइट? तो बार बार आपको ये सब जताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस अंटिल यू goof up big time. जो भी हम लोग सब ध्यान रखते हैं कि ना हो, लेकिन कुछ चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, उसका परिणाम क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे आगे. द ट्रस्ट इज ऑलरेडी बिल्ट इन एंड वी डोंट नीड टू स्पेंड टू मच टाइम कन्विंसिंग देम अगेन एंड अगेन ऑन दिस थिंग, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. डू यू एग्री? सेकेंड पार्ट, exactly, frankly, is the most important part that we don't have control at all, but still somehow they are still with us today. Not everybody would have left, right? And specifically the top clients. और रिटेन करने का कारण भी यही है, उसके लिए भी और हमारे लिए भी. उसको भी बाहर जाना पड़ेगा, दूसरा एडवाइजर ढूंढना पड़ेगा, ये मैच होगा नहीं होगा, बैठेगा मेरे साथ कैसे करेगा. सो ही विल आल्सो बी स्केप्टिकल, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपना टाइम स्पेंड किया है, इन्वेस्ट किया है. रिमेंबर, टाइम इन्वेस्टमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. टाइम इन्वेस्टमेंट आपका हो या क्लाइंट का हो, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसका टाइम. तो लिमिटेड टाइम में जो अच्छे से फाइंड कर सकता है उसको हम लोग स्टिक करते हैं. दिस इज अवर नॉर्मल साइकोलॉजी, राइट? द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज acquiring for us. The acquiring new clients can be as costly as 5 times than the retaining cost of existing client. आपने कभी चेक किया है, आप नए क्लाइंट के पीछे जाते हो तो उसके पहले उसको कन्विंस करो कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, ये बताओ वो बताओ, रेफरेंस दो, इस तरह से करेंगे. फिर वो बोलता है ठीक है मैं अभी 5% दूंगा, 10% डालूंगा, बाद में का बाकी डालेंगे, आके देखेंगे. बराबर है? जो कॉस्ट आपका टाइम स्पेंड हमारे लिए, वी आर ऑल कंसल्टेंट्स, राइट? एक लेवल के हम लोग जो एडवाइजर्स है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टाइम है. कितने कम टाइम में हम लोग क्या काम कर सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्रिटिकल फॉर अस. तो यहाँ पे जब हम लोग एक नया क्लाइंट खड़ा करने जाते हैं, हमारे लिए वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम लोग का ट्रस्ट फैक्टर ऑलरेडी बिल्टअप हो चुका है. वी स्पेंड एक्चुअली ऑन ऑनगोइंग बेसिस, बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं नए क्लाइंट, पुराने क्लाइंट को रिटेन करने के लिए. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर अस टू रिटेन अवर टॉप क्लाइंट्स. अगेन आई एम सेइंग टॉप क्लाइंट्स. बाकी क्लाइंट भी रिटेन करने ही है, लेकिन टॉप क्लाइंट तो खास करके रिटेन करने हैं. एंड मोर ओवर द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इट विल, if he goes, he will take up a big chunk of his investments with him. For us, in that perspective, will be a big loss in revenue. Do you agree with these points? Please say yes. क्या आप एग्री करते हो?
बेसिक आगे लाइक आई सेड मैं खाली सब बेसिक पॉइंट्स ले रहा हूँ, बहुत कुछ हो सकता है इसके पीछे, बहुत सारी चीज आएंगी, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग टू टच अप ऑन बेसिक एरियाज। ग्रेट, यस यस, ओके ग्रेट, हम लोग आगे चलते हैं। सो अभी सवाल आगे चलो, हम लोगों ने क्लाइंट देख लिया कौन है, उसको क्यों हमारे टॉप क्लाइंट भी कौन है वो भी डिफाइन कर लिया, उसको क्यों रिटर्न करना चाहिए वो भी देख लिया, लेकिन उसको रिटेन कैसे करना है, द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाट वी वांट टू लर्न टुडे, कि हाउ डू वी रिटेन अवर टॉप क्लाइंट्स। सो रिटेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, अनलेस अंटिल यू हैव बिल्ट ट्रस्ट, आपके पास क्लाइंट नहीं रुकने वाला है, अनलेस अंटिल ही ट्रस्ट यू ही विल नॉट बी देयर विथ यू, राइट। तो वो ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए कुछ फैक्टर्स है, और कैसे करेंगे, तो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट है शोइंग ट्रांसपेरेंसी। जितने ट्रांसपेरेंट हो सकते हो कि सर हाँ इस तरह से होने वाला है, ये मेरा कैपेबिलिटी है, मेरा ये फैक्टर नहीं कर सकता हूँ, मेरी लिमिटेशंस है, ये मैं अगर पहले से बताता हूँ, आई एम ट्रांसपेरेंट विथ हिम, ही आल्सो नोज व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम, राइट। एग्री करते हो? सो बीइंग ट्रांसपेरेंट इन योर कम्युनिकेशंस राइट फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू, कि आगे जाके वो आपको तकलीफ नहीं होगी। सो बीइंग ट्रांसपेरेंट इज समथिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन बिल्डिंग ट्रस्ट। एग्रीड? नेक्स्ट थिंग क्या है, और कैसे हम लोग रिटेन कर सकते हैं, बाय शोइंग हिम योर बिलीव्स एंड फॉलोइंग देम। हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग उसका पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करने वाले, उसको कैसे हेल्प करेंगे गोल अचीव करने के लिए, लेकिन उसके लिए अभी हम लोग एक ढांचा बना के रखते हैं। एवरी इन्वेस्टर, एवरी एडवाइजर इज वेरिंग विथ ईच अदर बिकॉज ऑफ हिज ओन बिलीव्स। हम लोग सब कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, कुछ एक फैक्टर में ब्रॉडली हम लोग सी अल्टीमेटली सबका डेटा सब जगह पे एक ही तरह से आने वाला है, लेकिन क्योंकि हमारी सोच अलग है इसलिए हम लोग पोर्टफोलियोज भी अलग तरीके से बनाने वाले हैं, अप्रोच हम लोग का सबका अलग रहेगा, राइट। तो आप पहले वो क्लाइंट को अगर आप बता सकते हो कि दिस इज माय बिलीव्स, दिस इज हाउ आई विल बी वर्किंग, एंड यू शोकेस हिम बाय एक्चुअली फॉलोइंग देम, आप सिर्फ बताते नहीं हो, फॉलो भी कर रहे हो, तब जाके क्लाइंट को बैठेगा, ट्रस्ट बैठेगा कि मुझे पता है कि ये बंदा कैसा है, ये जो बोलता है वो करता है। एग्रीड? एग्रीड? ग्रेट। नेक्स्ट, सिर्फ बिलीफ तो बता दिया, लेकिन ये बिलीफ को आपने काम कैसे कर रहे हो, आप काम कैसे कर रहे हो, हाउ डू यू शो के, सो उसके लिए यू हैव बिल्ट अप प्रोसेसेस, राइट, आपने कुछ प्रोसेस बना के रखा रहेगा, तो शो हिम दैट प्रोसेस आल्सो, शो द क्लाइंट योर प्रोसेस, सर ये हमारा प्रोसेस है, इस तरह से हम लोग ऑनबोर्ड करते हैं, इस तरह से हम लोग आपका डिजाइनिंग करेंगे, इस तरह से डेटा लेंगे, इस तरह से आपका कम्युनिकेशन आएगा, इस तरह से रिव्यू होने वाला है, क्या है जो भी है, आप जो भी सब करते हो कम्युनिकेशन जो भी है, आप उसको प्रोसेस बताइए आपका, एंड अगेन सिर्फ बताना काफी नहीं है, फॉलो करना है। अगेन बेसिक थिंग्स, हाउ डू यू रिटेन योर टॉप क्लाइंट्स। अभी इसमें जो बिलीफ एंड प्रोसेस है, ये आपने सब सोचा है, आपने जो बोला है पेपर पे कैसे डालना है, विथ सिंपल फॉर्मेट, सिंपल स्ट्रक्चर्स, हम लोग वो देखने वाले हैं आज, ठीक है। वो समझने के लिए और देखने के लिए हम लोग एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। यस, एग्रीड विकास, नॉट गिविंग फॉल्स कमिटमेंट्स, दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, जो बोला वो कर दिया तो ही ट्रस्ट बैठने वाला है ओवर द पीरियड, राइट। अभी हम लोग बात करेंगे सिनेरियो के ऊपर, तो बाय वे ऑफ दिस सिनेरियो हम लोग बताएंगे कि ये जो प्रोसेस है हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं, बिलीफ जो भी है उसको हम लोग कैसे बताएंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे क्लाइंट को, ठीक है। नॉट टेकिंग, वी गो स्लाइटली फास्टर नाउ with the scenario. So currently we are 10 years back, we are in December 2009, एक क्लाइंट है हमारा, उसके पास उसका जो गोल है कि उसको 2020 जैन 2020 में 5 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदना है, कॉमन गोल है सबके लिए। दिलीप प्रीवियस स्लाइड प्लीज, ओके, इज दिस ओके, इज दिस ओके, ठीक है, या। So the scenario is we are in currently in December 2009. The clients has a goal to buy a property worth 5 crores after 10 years. मतलब कि Jan 20 में उसको 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है, but with a condition that he wants to make 70% डाउन पेमेंट, मतलब मिनिमम 3.5 करोड़ उसको खड़ा करना है, ठीक है। This is his goal. He has given you two things: his target goal, goal target, and the tenure.
कितना टाइम में गोल चाहिए उसको कंप्लीट करने का, ठीक है। उसके पास क्या है आज की तारीख में, सो व्हाट ही हैज इज करंटली 1 करोड़ रुपीज लमसम। वो आज आपके पास, वो 2000, आप 2009 में हो, दिसंबर 2009 में हो, दिसंबर जैन 2010 शुरू हो रहा है, आप उसके लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो जैन 2010 में, तभी उसके पास 1 करोड़ रुपया है। वो बोलता है ये 1 करोड़ लो और मेरा 10 साल का टारगेट है, 10 साल में मुझे 5 करोड़ का घर खरीदना है, उसके लिए मुझे 3.5 करोड़ डाउन पेमेंट करनी है। दिस इज हिज टारगेट। सो अवर टारगेट इज 1 करोड़ टू 3.5 करोड़ इन 10 years। इज इट पॉसिबल? क्या लगता है, इज इट पॉसिबल? यस नो, क्या लिखिए, लिखिए, कुछ तो लिखिए, मुझे मालूम पड़ेगा यू आर फॉलोइंग मी। नहीं, नीरव सेज नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तेजस सेज नो, जितेश सेज नो। अरे आप लोग ये इंडस्ट्री में हो और आप लोग बोल रहे हो यू डोंट बिलीव कि 10 साल में, ये पिछले 10 साल में ये टारगेट अचीव नहीं हो सकता था। सो यू मीन द कॉर्पस couldn't have increased 3.5 times? इज इट? चलो देखते हैं आगे क्या है, होता है कि नहीं होता है। Why should one wait to buy 5 crore property with 1 crore cash? सी कल्पेश भाई, उसका गोल है 10 साल के बाद खरीदना है, उसके बच्चे, उसको समझ लो उसके बेटे के लिए उसको खरीदना है, उसको अभी नहीं खरीदना है, उसका बेटा अभी उसके बेटे के एज के हिसाब से उसको खरीद के देना है वो टाइम पे, ठीक है। सो फॉरगेट, दिस इज जस्ट अ सिनेरियो। Let us talk various, there are multiple things, but let us talk about the current scenario that we are going to work. The reason to put up this thing is that we will understand with numbers। हम लोग नंबर के साथ में समझना चाहते हैं आपका जो थॉट प्रोसेस कैसे डिस्प्ले करोगे, आपका जो प्रोसेस है वो कैसे करो, जो हम लोग बिलीफ है वो कैसे प्रोसेस करोगे, ठीक है। उसके लिए हम लोग आगे चलते हैं। अगेन सर्विस वी विल डू लेटर। अभी कुछ भी, अभी गोल तो गोल मिला क्लाइंट का, अभी गोल अचीव करने के लिए हम लोग क्या क्या करना पड़ता है। तो गोल अचीव करने के लिए सबसे पहली चीज, वी हैव टू डिफाइन द गोल। नीड है, वांट है, दिस इज अवर बेसिक प्रोसेस, राइट, ऑल एडवाइजर्स के लिए, राइट। नीड है, वांट है, गोल है, गोल अमाउंट कितना है, गोल टेन्योर क्या है, प्रायोरिटी कितनी है, दिस इज द वे वी डिफाइन द गोल्स। आप सब करते हो ऐसे? यस, द फर्स्ट स्टेप, करेक्ट, डिफाइन करते हैं गोल को। सेकेंड स्टेप, assess what resources the client has and is going to receive in the journey। उसके पास आज क्या है और आगे और क्या क्या मिलने वाला है उसको, ये गोल के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, ये सेकंड थिंग हम लोग देखते हैं, बराबर है। आज एसेट्स कितने हैं उसके पास, और आगे एसआईपी वगैरह करने के लिए उसके पास आगे और क्या इनफ्लो आ सकता है, ये गोल के लिए, ठीक है। थर्ड थिंग, वी डिजाइन अ स्ट्रेटेजी टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन द टाइम फ्रेम टू अचीव द गोल। तो जो भी हम लोग के पास रिसोर्स अवेलेबल है, अभी आज का 1 करोड़ रुपया है वगैरह जो भी है उसके पास, ये सब हम लोग कैसे यूज करेंगे थ्रू अ स्ट्रेटेजी। हम लोग एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, बराबर, कि हम लोग पैसा इस तरह से डालने वाले हैं, जो भी करने वाले हैं, राइट। उससे भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी आज बनाई लेकिन वो स्ट्रेटेजी 10 साल चलने वाली है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग वो स्ट्रेटेजी जो डिजाइन किया है उसको हम लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं। मार्केट है हमारे हाथ में, कंट्रोल नहीं है, मार्केट ऊपर नीचे जाने वाला है, तो हम लोग का काम है कि वो स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करना है। तो उसके लिए जो करेक्शन करना पड़ेगा, जो ऊपर नीचे गया हुआ है पोर्टफोलियो वैल्यू, उसको वापस रीबैलेंस करके कैसे लाएंगे, दैट इज द पार्ट, दैट इज हाउ वी विल बी अचीविंग द गोल और वी विल बी रीचिंग द गोल। क्या आप ये सब फॉलो करते हो? यस, एसेट लोकेशन वगैरह, यस, so that is a part of the strategy, right? This is how we do it. This is our basic step process, correct? Okay, let's go forward। क्लाइंट, ये तो भी आपने, ये आपके लेवल पे आपने बना दिया, लेकिन ये क्लाइंट को डिस्प्ले करना पड़ेगा ना, कॉन्फिडेंस देने के लिए, ट्रस्ट बिठाने के लिए कि हम लोग जो करने वाले हो कैसे करने वाले हो, क्या करने वाले हो। तो जो स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हो, दैट विल बी शोकेस बाय वे ऑफ क्रिएटिंग द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। आप पोर्टफोलियो बनाओगे, उसके थ्रू ही उसको कन्वे करोगे ना, कि इस तरह से ही मैं ये मैं आज पोर्टफोलियो में क्या डालने वाला हूँ, क्यों डालने वाला हूँ, और हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, 10 साल में हम लोग कैसे पहुंचेंगे, कितने की एसआईपी है, आज ये लमसम डाल रहे हैं हम लोग एसआईपी, आज जो लमसम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसको हम लोग कैसे डिप्लॉय करेंगे, ताकि वो और आगे हर साल में क्या क्या करने वाले चेंजेस पोर्टफोलियो में, ब्रॉडली एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते हम लोग, बोल नहीं सकते, लेकिन एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी हम लोग बना सकते हैं, राइट। तो स्ट्रैटेजी बनाया, लेकिन वो डिस्प्ले कैसे करेंगे, बाय वे ऑफ क्रिएटिंग द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, कंपोनेंट्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स। सबसे पहले क्लाइंट गोल पैरामीटर्स, अमाउंट और टेन्योर हमारे पास है। एडवाइजर का इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी फ्रेमवर्क, हाउ आर यू गोइंग टू वर्क, इन व्हाट फ्रेमवर्क यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर पोर्टफोलियो। जो आप पोर्टफोलियो बनाने वाले हो, क्या बेसिस पे बनाने वाले हो, आप क्या सोचते हो,
what are your beliefs, what is your process, right? तीसरा चीज है प्रोडक्ट्स, आप कौन से प्रोडक्ट यूज करने वाले हो ये अचीव करने के लिए। प्रोडक्ट्स, रिमेंबर प्रोडक्ट्स आर अ टूल, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट इज जस्ट अ टूल टू अचीव सम गोल्स, राइट? देयर आर अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आल्सो अवेलेबल, सो प्रोडक्ट्स आर जस्ट अ टूल। सो हम लोग, लेकिन जो हम लोग जो थॉट प्रोसेस, हम लोग जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं ये सब पकड़ के, उसमें कौन सा प्रोडक्ट हम लोग यूज करने वाले हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बेसिकली अगर आपके पास ये तीन चीज है और चौथी ये सब मिला के हम लोग एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट यूज करूंगा, इस तरह से यूज करूंगा, ये रेशियो में करूंगा, इस तरह से हम लोग को स्ट्रैटेजी बनाएंगे। वो दिखाएंगे बाय वे ऑफ पोर्टफोलियो कि मैंने इतना टका इसमें डाला है, इतना परसेंटेज इसमें डाला है। ठीक है, एग्रीड? अभी हम लोग स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। तो जो स्ट्रैटेजी बनाई उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा एडवाइजर्स इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी फ्रेमवर्क। अभी जब मैं ये बोल रहा हूँ बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन एक्चुअली दिखता कैसे है एक्सेल में, मैं कैसे दिखाऊंगा अभी आपको। चलो देखते हैं। लेट अस हैव अ क्विक व्यू ये कैसे दिखता है या आप कैसे बनाओगे। आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? Not yet, not yet. Okay. I'll just share it again. It's loading. Wait a minute. Yeah. दोस्तों पूरा खेल अभी शुरू हो रहा है। Yes, it's coming now. Yes, ठीक है, ग्रेट। अभी सब लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बहुत सारा नंबर्स वगैरह दिखेगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जब मैं बोल रहा था पहले कि हम लोग कैसे दिखाएंगे, कैसे डिस्प्ले करते हैं, वो सब खेल अभी शुरू होने वाला है। ठीक है, बी देयर। ये है अपना इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी फ्रेमवर्क। अभी आप यहाँ पे देखते हो गोल्ड टेन्योर। वी आर डिफाइनिंग गोल्ड टेन्योर बाय शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मैं एक छोटा कर देता हूँ। यू आर नॉट एबल टू सी द होल स्क्रीन। इज इट विजिबल नाउ? Yes, perfect. एग्रेसिव, अभी कौन सी वाली स्ट्रैटेजी? अभी अगर आप यहाँ पे देखो, आई एम नॉट सेइंग क्लाइंट रिस्क प्रोफाइल, आई एम सेइंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी विल बी एग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव। व्हाई आई एम नॉट सेइंग क्लाइंट रिस्क प्रोफाइल? क्लाइंट रिस्क प्रोफाइल, मैं एक बहुत बड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, लेकिन अगर मेरा गोल 3 महीने में आने वाला है तो क्या मैं पैसा सब इक्विटी में डालूंगा? क्या बोलते हो, आप डालोगे पैसा 3 महीने के लिए गोल के लिए इक्विटी में पैसा डालोगे? इवन दो यू आर वेरी एग्रेसिव, नहीं ना। दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज। हम लोग सिर्फ रिस्क प्रोफाइल पकड़ते हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि क्लाइंट का पैसा और इनफैक्ट हमारा पैसा भी, हम लोग कितने भी एग्रेसिव हो, हम लोग कितनों भी मालूम है कि अरे 10 साल में अपने को अच्छे खासे रिटर्न मिल जाएंगे, सब मिलेगा, सब एग्रीड है। लेकिन अगर हम लोग का शॉर्ट टर्म गोल है, हम लोग कभी भी इक्विटी में नहीं डालेंगे, ये हम लोग सोचते हैं, बराबर है। यही हम लोग उसको डिस्प्ले कर रहे हैं कि अगर हम लोग का एग्रेसिव प्रोफाइल है, हम लोग स्ट्रैटेजी एग्रेसिव रखने वाले हैं, और अगर मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, मतलब 1 मंथ टू 3 इयर्स तक है, फिर भी मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो 0 to 10% ही रहेगा। एट द सेम टाइम मेरा डेट में 90 to 100% रहेगा। एट द सेम टाइम अगर यही पैसा मेरा वेरी लॉन्ग टर्म मोर देन 12 इयर्स के लिए है, तो मैं 90 to 100% इक्विटी में रहूंगा एंड 0 to 10% मैं डेट में रहूंगा। दिस इज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर। हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये डिस्प्ले करना है, लिख के दिखाना है। जब लिखा हुआ रहेगा ना तो सब लोग मानते हैं। zoom a little, okay? Is it okay? भोसले जी, is it visible? पूरा पिक्चर विजिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने थोड़ा मिनिमाइज किया था। इसके बाद ये तो हमने देखा कि ओवरऑल एसेट लोकेशन कैसे आ रहा है, लेकिन क्या आप सिर्फ इक्विटी बोल के छोड़ देंगे? नहीं, बिकॉज जब हम लोग नीचे आ रहे हैं, आई एम नाउ दिस इज मोर स्पेसिफिक टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड पर्सपेक्टिव। ठीक है, एग्रेसिव गोल्ड इक्विटी में भी कौन सी कैटेगरीज है? लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हम लोग ये सब कैटेगरी यूज करेंगे। लेकिन इसमें से आप किस पे बिलीव करते हो और आप कौन से वाले फैक्टर कभी देने वाले हो? एग्जांपल के लिए मैं वेरी लॉन्ग टर्म बोलता हूँ, और अगर मैं 12 साल के ऊपर के लिए मैं बोलता हूँ कि भाई मैं एग्रेसिव फॉर्मेट में इक्विटी में मिड एंड स्मॉल कैप के लिए मैं आपको मिनिमम 45% मिड कैप में डालूंगा, मैक्सिमम 55% डालूंगा। मतलब आई वुड बी फोकसिंग मोर विद मिड एंड स्मॉल कैप। ठीक है ना? ओके, आई विल रिड्यूस इट स्लाइटली। इज इट ओके? बेटर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं पहले से आपको सब कुछ लिख के बता रहा हूँ सर। अगर अब मेरा ये सब चीज लिखा हुआ है, मेरा ये बिलीफ लिखा हुआ है, मेरा प्रोसेस बिलीफ लिखा हुआ है, अर्लियर वाज बेटर, बड़ा करूं? ठीक है, बड़ा करता हूं। सी ब्रॉडली ये
ये चीज बहुत बड़ी है, ऐसे छोटे मोटे नहीं दिखने वाली है, बट आपको खाली एक पिक्चर दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ कि आपका जो हम लोग बात करते हैं, बात करने से ज्यादा लिख के दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब Friends, try लिखा to हुआ रहेगा, understand the concept. Try to understand the concept. यस प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। हम लोग को समझ, ये बेसिक चीज समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शायद ब्रॉडली आप फॉलो करते होंगे, हाँ एग्जैक्टली, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा ये सब पहले। ये दिखाना बहुत जरूरी है कि भाई ये मैं कैसे फॉलो करता हूँ, ठीक है। लेट अस कम बैक टू द स्क्रीन, वी हैव समथिंग मोर टू कवर। Friends, you all can zoom your this screen at your end as well. Am I back? मेरी तो PPT Yes, दिख you रहा are है? back. Yes, Yeah, you are back. okay. नेक्स्ट थिंग, हम लोग जो बोलते हैं सूटेबल प्रोडक्ट्स है, सूटेबल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट एलोकेशन मैट्रिक्स देखते हैं। व्हाट इज इट अवेलेबल, दिस इज द प्रोडक्ट एलोकेशन मैट्रिक्स। अभी इसमें जब मैं बात करता हूँ तो ये ब्रॉडली क्या है, ये है चीज क्या। आपने हम लोगों ने बोला कि भाई मेरे पास आज मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। ब्रॉडली आपको शायद मिनिमाइज किया हुआ है, शायद ठीक से नहीं दिखा। ब्रॉडली मैं दो चार नाम लेता हूँ, एफडी है, एनएससी है, किसान विकास पत्र है, पीपीएफ है, बॉन्ड्स है, डेट म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर, ये बहुत सारे एक लिस्ट मैंने बना के रखा है जो मार्केट में ब्रॉडली अवेलेबल है। अब ये अवेलेबल तो है, लेकिन इसमें से मैं क्या डील करता हूँ, मैं कौन से प्रोडक्ट में डील करता हूँ और मैं वो कैसे सोचता हूँ, ये मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव, ठीक है। सामने मैं गोल्ड टेन्योर डालता हूँ और ये मैं मैट्रिक्स बना रहा हूँ यहाँ पे, 0 to 3 years, 3 to 7 years, more than 7 years। अभी इसमें करना क्या है हम लोग को सोचना है कि अगर 0 to 3 year के लिए कंजर्वेटिव क्लाइंट के लिए मैं इसमें से कौन सा वाला प्रोडक्ट दूंगा। Divesh bhai, your matrix is not visible. नॉट विजिबल, ओके आई विल इट। अच्छा मैं शायद से स्क्रीन शेयर नहीं किया, एक मिनट, सॉरी, आई एम माय मिस्टेक। इज इट विजिबल नाउ? Yeah. ओके Yes, ओके yes. सॉरी, या And repeat it again, sir. हाँ, Divesh bhai, यस इसको यस। जरा repeat कीजिए. सो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखते हो, आई हैव एक्चुअली पुट अप अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, ब्रॉडली एफडीज, एनएससी, केवीपी, मंथली इनकम स्कीम, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी शेयर्स, पीएमएस, जितने प्रोडक्ट आपको समझ में सब मैंने डाल दिया यहाँ पे। लेकिन ये सब प्रोडक्ट में से, इसमें से पहली बात तो मैं किसमें डील करता हूँ, मैं सब में शायद डील नहीं करता हूँ, या शायद मैं सब में डील करता हूँ। अगर मैं सब में भी डील करता हूँ तो इम्पोर्टेंट है कि मैं इसमें से ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा, तो कौन सा वाला प्रोडक्ट किसको दूंगा, कभी दूंगा, ये आपकी फिलोसॉफी जो होती है या फिर थॉट प्रोसेस जो है कि आप ये कौन से वाले प्रोडक्ट किसको देना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। तो हम लोग इसको एक छोटा सा मैट्रिक्स बनाते हैं यहाँ पे, मैं एक छोटा करता हूँ, थोड़ा सा पूरा दिखेगा। Divesh bhai, थोड़ा mic नजदीक लेके जाना sir. श्योर, ओके, इज इट ऑडिबल नाउ? Yeah, it is audible, लेकिन थोड़ा नजदीक लेके जाएगा तो थोड़ा और क्लियर आएगा. ओके ओके, ठीक है, बेटर। Yeah. या ये वाला जो अभी हम लोग को बनाना क्या है, हम लोग को ये जो हम लोग ने जो प्रोडक्ट बोले हैं वो सब हम लोग को यहाँ पे प्लॉट करने हैं। प्लॉट कैसे प्लॉट करना है, मतलब 0 to 3 year में कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए मैं क्या दूंगा, शायद एफडी दूंगा, 3 साल वाला एफडी दूंगा, 2 साल वाला एफडी दूंगा, इसमें शायद मैं इक्विटी नहीं दूंगा। अगर कोई बोलता है कि नहीं मेरे लिए तो मैं 2 साल तक इक्विटी दे सकता हूँ, या हाइब्रिड फंड दूंगा, तो यहाँ पे आप हाइब्रिड फंड लिख सकते हो। तो आप आपके एज एन एडवाइजर आप जो जो सोच सकते हो, आप कितने एग्रेसिव हो उसके ऊपर आपका ये मैट्रिक्स बनेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड का एक मैट्रिक्स बना के रखा है, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी समझने के लिए। अभी मेरा यहाँ पे एग्रेसिव क्लाइंट के लिए, एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए मोर देन 7 years के लिए मैंने मल्टी कैप, ईआरएसएस, वैल्यू फोकस, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की, सेक्टोरल, सेक्टोरल और थीमेटिक, इंटरनेशनल फंड्स, ये सब मैं दे सकता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए मोर देन 7 years के लिए शायद मैं सिर्फ लार्ज कैप, लार्जर मिड कैप, मल्टी कैप, वैल्यू और कॉन्ट्रा एंड डिविडेंड यील्ड फंड में ही दूंगा। आई विल नॉट गो फॉर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, ठीक है ना। आपको ये समझ में आ रहा है? डू यू थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट? अगर आप ये सब चीज, अगर आपको फर्स्ट डे, फर्स्ट मीटिंग में क्लाइंट को अगर आप ये बोलते हो सर मैं इसी तरह से काम करता हूँ, मैं यही तरीके से मैं एलोकेट करूंगा, कौन सा वाला प्रोडक्ट कभी देना है आपको ये मैं डिसाइड करूंगा। आर यू सेटिंग योर एक्सपेक्टेशंस राइट एट द फर्स्ट मीटिंग? क्या ये आप बना के दिखा सकते हो क्लाइंट को?
अगर आप फर्स्ट डे से क्लाइंट भी मानेगा कि नहीं कि हाँ यहाँ पे मुझे रिस्क नहीं लेना है, ये फैक्टर में मैं रहूंगा बराबर है ये। और जब जब आप उसको मिलते हो, अगर आपके पास ये बना हुआ चीज है और उसको हर बार आप जब भी क्लाइंट बोलता है कि तू ये वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं देता है मुझे, वो वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं देता है, ये हम लोग उठा के दे सकते हैं। ये somebody's raising hand. I think I can't see that. I think we will take up the questions later. If you want, you can put up something in the chat. No, it's not like yeah, MFD working as CFP. It is not only that. See, important part है कि हम लोग क्या believe करते हैं. If we are believing in this thing, if we are believing in these things, will it not impact the client relationship at the start itself? फर्स्ट डे से मैं अगर बोल देता हूँ कि सर मैं इस तरह से देने वाला हूँ आपको सब प्रोडक्ट्स, आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे ना सीधा सीधा। ये एक मैंने दूसरा एक नेट फंड के लिए बना के रखा है जिसमें मैंने आई हैव ओनली यूज्ड द टॉप 5 और 6 प्रोडक्ट्स। आई विल नॉट गो टू यूज द अदर डेट प्रोडक्ट्स आल्सो, अदर म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स itself. सो मैं उसके लिए भी एक ऐसा पिक्चर बना के रख सकता हूँ सर, जब आपका गोल अगर 3 साल में रहेगा मैं आपको सिर्फ यही देने वाला हूँ। अगर आप एग्रेसिव क्लाइंट हो तो मैं आपको अल्ट्रा शॉर्ट या लो ड्यूरेशन तक जाऊंगा। ये बेसिक पार्ट है। स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी विकास भाई, लेकिन स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आप क्लैरिटी दो आप क्या किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाने वाले हो क्लाइंट को। और यही चीज अगर आप एक बड़े आपके जो टॉप क्लाइंट्स है, अभी ध्यान रखो यहाँ पे वी आर अगेन कमिंग बैक नॉट ओनली टू योर क्लाइंट्स, क्लाइंट के हर क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन टॉप क्लाइंट को अगर आप दिखा सकते हो, डू यू एग्री कि वो बंदा हमेशा आपके पास रहेगा टू एन एक्सटेंट। बेसिक क्योंकि आप सब कुछ जो दिखा रहे हो वो बता रहे हो, जो बोल रहे हो वो दिखा रहे हो उसको। एग्री? ठीक है, ग्रेट। हम लोग अभी थोड़ा फास्ट करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ और बाकी है दिखाने के लिए मुझे आपको। I'll go back to the PPT. Are you able to see my screen again? Yes, it's PPT back now. Yeah, great. ठीक है। So स्ट्रैटेजी का पार्ट हो गया। एक तो हम लोग ने इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी देखा बना लिया अपना, दूसरा हम लोगों ने ये प्रोडक्ट एलोकेशन मैट्रिक्स बना दिया है। मैं अब ये दोनों चीज यूज करके ही मेरा स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, लेकिन उसमें क्या करूंगा, उसमें मैं एसेट एलोकेशन यूज करूंगा। ये कंडीशन के हिसाब से अगर मैं एसेट एलोकेशन करता, दैट इज वेयर माय स्ट्रैटेजी विल बिल्ड अप, और उसमें मैं अलग अलग तरीके से यूज करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई है। एक चीज मैंने बनाई है, डिजाइन किया है, जहाँ पे मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट लेवल, आज जो 1 करोड़ रुपया, मुझे याद करो सिनेरियो वापस अपना, ये हमारे पास 1 करोड़ रुपया है, 3.5 करोड़ चाहिए 10 साल में। कुछ लोग बोल रहे थे शायद नहीं पहुंचेगा, लेकिन वी विल जस्ट वेरीफाई दैट पार्ट। अगर तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 S1 मतलब स्ट्रैटेजी 1, मैंने आज खाली एक पोर्टफोलियो एलोकेशन डिजाइन किया है, एसेट एलोकेशन आज डिजाइन किया है, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। फिर जैसे मार्केट जा रहा है वो चलता रहेगा, मैं उसको देखने वाला नहीं हूँ। ठीक है, ये भी हम लोग कुछ तरीके से एक अप्रोच हम लोग ले सकते हैं। दूसरा वाला है कि हम लोग ने आज एक स्ट्रैटेजी बनाई है और इन्वेस्टमेंट शुरू किया, पोर्टफोलियो बनाया, और मैं हर साल वो स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ। हर साल उसको सेम डेट पे, एवरी ईयर ऑन ईयर बेसिस, 10 साल के लिए मैं हर साल उसको वो टाइम पे रीबैलेंस करूंगा। जो भी डिविएशन हुआ है, मार्केट कंट्रोल में नहीं है, कुछ ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, कोई स्कीम ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सबको मुझे वापस बैलेंसिंग लाना है जो मैंने स्ट्रैटेजी में सोचा है। ठीक है, ये 2 पार्ट करेंगे हम लोग, देखते हैं आगे क्या असर आती है। आगे जाने से पहले मैं कुछ आपको रेस्ट्रिक्शन बोल देता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी के लिए फ्रेमवर्क में जो रेस्ट्रिक्शंस मैंने यूज किए हैं। सबसे पहले, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग सम व्यूज, आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग अ व्यू हियर। ठीक है, मैंने कुछ वर्किंग किया था, मैं मेरे खुद के लिए कुछ रिसर्च कर रहा था देखने के लिए कि एसेट लोकेशन सब लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली काम आता है कि नहीं आता है, एसेट लोकेशन काम आता है कि नहीं आता है, वो देखने के लिए मैंने एक्चुअल डेटा लिया है स्कीम्स का, और उसके ऊपर से मैंने परफॉर्म किया था एक्शन। ठीक है, विल गो फॉरवर्ड। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, I have assumed zero returns for all the products in a year at the start of each year. मतलब मैंने हर जो भी स्कीम्स है मैंने अज्यूम की कि मैं अभी अगले 1 साल में ये जीरो रिटर्न देने वाला है, उसके बेसिस पे मैंने एसेट लोकेशन परफॉर्म किया है। ठीक है, जीरो रिटर्न नहीं आने वाला है, बट आई डोंट नो व्हाट इज ट्रू। मुझे पता नहीं कि वो 8% कमाएगा, 10% कमाएगा, 12% कमाएगा, 15% कमाएगा, मुझे नहीं पता है।
तो मैं वैसे मुझे पता नहीं है, तो बेटर है कि मैं 0% रिटर्न लेता हूँ, जो आया वो देखा जाएगा, है ना। सेकेंड, I have used only 3 categories in equity. Again, this is purely mutual fund part only. 3 categories in equity and 2 categories in debt mutual funds. ठीक है. I have used only single scheme for each category. So हर एक category total 5 category है. Okay, is it not audible right now again? ठीक है. I hope now it is better. I have used only single scheme. I have not changed the schemes just to understand कि asset allocation काम करता है या नहीं करता है. Actually, practically, we may be changing the schemes also. ठीक है. And I have used only single point of investment, that is आज की तारीख में जो मैं जो बना रहा हूँ वो आज जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया मैं उसके ऊपर ही चलने वाला हूँ. आई एम नॉट री इन्वेस्टिंग एनीथिंग फर्दर. मैं नया पैसा नहीं डालने वाला हूँ, ना एसआईपी करने वाला हूँ. ठीक है. दीज आर द माय रेस्ट्रिक्शंस विद गोइंग फॉरवर्ड फॉर दिस सिनेरियो. तो अभी क्या है, फर्स्ट पार्ट मेरा जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाया वो था कि मैं स्टार्टिंग में अभी के लिए 90-10 से चालू करता हूँ. 90% इन इक्विटी, 10% इन डेट. ओवर द पीरियड आई एम कीपिंग इट 90-10 इन इक्विटी. फिर 2013 में 75-25 कर दिया. फिर 2015 में मैंने 50-50 कर दिया. So as the goal is approaching, I am lowering my equity exposure and I am shifting it towards debt completely, so that last time at the end moment I am fully in debt. Is it okay? सब लोग को ठीक है, ये सब लोग समझ में आया? Yes करिए प्लीज. Great. ठीक है, I will go forward. The second part of this strategy is in the equity. I have used only 3 categories like I mentioned: large cap, mid cap, and small cap. And in the debt part, I have used only ultra short duration and low duration. And within the equity, अभी equity का 100% मतलब 1 करोड़ रुपए का 1 करोड़ रुपए का ना मैंने 90% लिया है इक्विटी का, बराबर. तो 90 लाख रुपीस. अभी 90 लाख रुपीस को मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, तो आई विल बी इन्वेस्टिंग 90 lakhs का 25% इन लार्ज कैप, 90 lakhs का 40% इन मिड कैप, 90 lakhs का 35% इन स्मॉल कैप. शिवेश भाई एक्सेल फिर से नहीं आया है सर अभी. नहीं, एक्सेल अभी नहीं है, एक्सेल नहीं है अभी. मैं अभी एक्सेल पे गया नहीं हूँ, दिखाऊंगा वापस. मैं ये जो खाली स्ट्रेटेजी का पार्ट बता रहा हूँ. डेट का पार्ट जो है 10 लाख रुपए है. 10 लाख रुपए का अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन 20% है और लो ड्यूरेशन 80% है आज की तारीख. बट ओवर द पीरियड जैसे जैसे मेरा गोल आ रहा है नजदीक, आई एम रिड्यूसिंग द इक्विटी पोर्शन. उसी तरह से इफ यू ऑब्जर्व हियर, मैं स्मॉल कैप और मिड कैप में से भी रेशियोज कम करते जा रहा हूँ. धीरे धीरे आई एम शिफ्टिंग एवरीथिंग टू लार्ज कैप एज द गोल इज कमिंग अप. और फिर आई एम गोइंग जीरो इन इक्विटी एंड आई एम ऑल्सो इन द डेट साइड. currently I am more in low duration and then slowly I am shifting more in ultra short durations. सबको समझ में आया ये? everybody is clear on this? ठीक है. अभी मैं आपको एक्सेल दिखाता हूँ जहाँ पे ये पोर्टफोलियो रिव्यू को एक्सेल से क्या मिला. I'll just share my screen again. Are you able to see my Excel? Yes. It's visible. Sir, USD is ultra short duration fund and LD is low duration fund. जैसे कि मैंने बोला कि डेट, और मैं यहाँ पे आपको वापस दिखा देता हूँ. मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो मैं इक्विटी और डेट में 90-10 रेशियो में चल रहा हूँ, अभी से शुरू कर रहा हूँ. एंड within equity I am using large cap, mid cap and small cap, and within debt I am using ultra short duration and low duration. ठीक है सर. पीपीटी शेयर करने का छोड़िए, आप कंसेप्ट समझ लीजिए. अभी आप पीपीटी में से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है. आप ये पीपीटी छोड़ दीजिए, ये कंसेप्ट समझने का ट्राई कीजिए. सर ये नंबर कहीं पे भी आप जुगाड़ करके लगा सकते हो. तो जो मकसद है इसका, वो मकसद यही है कि भाई हमको एसेट एलोकेशन करके क्लाइंट को दिखाना है, लेकिन हम कभी वो उसको होल्ड नहीं करते हैं. तो हम लोग बिलीव नहीं करते. इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पहले बिलीव करें कि एसेट एलोकेशन से काम होने वाला है और ये कैसे करना है, इसका इंपॉर्टेंस पार्ट देखने वाले. अभी मैं यहाँ पे मैंने एक्चुअल स्कीम का डेटा लिया है. मैंने एक्चुअल स्कीम का डेटा लिया है, एवरी ईयर ऑन ईयर एक्चुअल एनएवीज लिया है. उसके बाद में ये एसेट एलोकेशन कर रहा हूँ. मैं आपको बहुत जल्दी फटाफट दिखा देता हूँ. अभी स्टार्टिंग अपना 1 करोड़ रुपया है. आई होप आई विल बी जस्ट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, स्क्रीन दिखेगा. स्क्रीन विजिबल है? यस यस. या ठीक है.
currently we are building the portfolio on 4th Jan 2010. आज अगर किसी का इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या यही फॉर्मूला लेना है? संजय भाई, आज नहीं, कभी भी। ये फॉर्मूला नहीं है, ये स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करनी है वो आपको समझना है। ये तो नंबर रैंडम है सर, ये डिपेंड करता है कि मैंने कौन से गोल के लिए कभी कितना रेशियो रखा है। अगर 5 साल का गोल रखा तो आपका शायद चेंजेस हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि मैं सिर्फ ये सिनेरियो टेस्ट करना चाहता था, इसके लिए मैंने ये इतना लिमिटेशन में काम किया है, वरना तो बहुत सारी चीज आ जाएंगी। डेट की 16 कैटेगरीज है, राइट? इक्विटी की 10 कैटेगरी है, इतना सब कर नहीं सकते एक साथ, लेकिन बेसिक आइडिया था कि एसेट लोकेशन काम करता है कि नहीं करता है। हाँ, तो दिवेश भाई ये बैक टेस्टिंग जिसको बोलते हैं ना, बैक टेस्टिंग, तो हाँ, दिवेश भाई अभी ये काम कर रहे हैं। यस, बैक टेस्टिंग करके मैंने देखा है, ठीक है ना। तो ये लमसम इन्वेस्टमेंट हम लोग के पास आज 1 करोड़ रुपया है, इक्विटी 90%, डेट 10%, 90 लाख रुपया, 10 लाख रुपया विद इन इक्विटी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 25, 40, 35 ये अमाउंट में आ गया रुपीज में। सेम थिंग डेट एलोकेशन 20% और 80%, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने बोला कि मैंने 2 स्ट्रैटेजी फॉलो की है। एक वाला पार्ट है जहां पे मैं कुछ भी रीबैलेंसिंग नहीं करता हूं, जहां पे मैं कुछ भी रीबैलेंसिंग नहीं करने वाला हूं, और दूसरा वाला पार्ट है जहां पे मैं रेगुलरली एवरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रीबैलेंसिंग करने वाला हूं, ठीक है। आज का सिनेरियो ऐसा दिखता है हम लोग को। टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 1 करोड़ रुपया है। अभी इक्विटी का पोर्शन में लार्ज कैप 25% था, लेकिन टोटल पोर्टफोलियो में वो 22.5 हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल एनएवीज ले लिया स्कीम का और कितना यूनिट्स आ गया उसका। सेम थिंग इसके लिए भी अप्लाई हो रहा है। 1 साल के बाद, ये मैंने आज पोर्टफोलियो बनाया है, ठीक है। 1 साल के बाद क्या होता है, रिमेंबर मैं यहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो बनाया 4 जैन 2010 को। अभी मैं 1 साल के बाद 3 जैन 2011 को मैं रिव्यू कर रहा हूँ। डेट एग्जैक्ट मैच नहीं हो रही क्योंकि उस दिन का एनएवी अवेलेबल, फर्स्ट और सेकंड जैन का छुट्टी था शायद से, उस दिन का एनएवी अवेलेबल नहीं है। तो जो फर्स्ट एनएवी अवेलेबल है वो साल का, वो मैंने यूज किया है, ठीक है। सिचुएशन क्या है, 3rd जैन को सिचुएशन है कि मेरा सब ये एनएवीज आ गया, मेरा वैल्यूज हो गया ये 22 लाख रुपया, 22.5 लाख रुपया लार्ज कैप का, 28 लाख हो गया, 40 लाख रुपया मिड कैप का, 47 लाख 51,000 हो गया। मतलब जो रेशियो बोले अगर सबका, तो ये मेरा रेशियोज बन गया 23%, 38% वगैरह, ठीक है। सेम थिंग रीबैलेंसिंग अभी तक हम लोगों ने किया नहीं है, इसलिए सबका दोनों का रेशियो सब सेम दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मैं एनालाइज करता हूँ कि अभी मेरा सिचुएशन क्या है। अभी इक्विटी में, इक्विटी मेरा जो वैल्यू था, करंट वैल्यू आज ये है, इसका रेशियो बनता है 91.5% एंड 8.5% इन डेट। मेरे को रिक्वायरमेंट, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, 90-10 रखना है। तो मुझे रीबैलेंसिंग कितनी पड़ेगी, कितनी करनी पड़ेगी, 1,80,000 इक्विटी से निकाल के डेट में डालनी है, ठीक है। रिमेंबर यहाँ पे मैं कोई रीबैलेंसिंग नहीं करने वाला हूँ। दूसरा जो राइट हैंड साइड पे है वहां पे मैं कुछ रीबैलेंसिंग नहीं करता हूँ, मैं रेशियो ऐसे ही रखने वाला हूँ। मैं अभी रीबैलेंसिंग करता हूँ तो उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मेरे पास कैटेगरी लेवल पे मुझे एलोकेशन करना पड़ेगा, जहां पे मेरा कैटेगरी एलोकेशन है 25, 40 एंड 35। लेकिन आज की तारीख में मेरा रेशियो है 25.17, 42 एंड 32.84। तो मेरा रीबैलेंसिंग होता है यहाँ पे कि मुझे लार्ज कैप और मिड कैप से निकालना है, और मेरे को मिड कैप में, स्मॉल कैप में बोल रहे हैं 1.8 लाख रुपीज ऐड करने का है, और नेट नेट 1.8 लाख रुपीज इक्विटी से निकलेगा जो मेरा डेट में जाएगा, ठीक है। थोड़ा एक्सेल है, थोड़ा बिगर स्पेसिंग होने वाली है, डोंट वरी, मैं आपको इसलिए बोल के समझा रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। अगर ये हम लोग मैथमेटिक्स करते हैं, सिंपल सिंपल नहीं है, थोड़ा सा है, बेसिक प्लस माइनस ही है, लेकिन थोड़ा सा अगर समझ के करना पड़ेगा हम लोग को। अगर आप समझो यहाँ पे ब्रॉडली हम लोग को सिर्फ 1.8 लाख रुपीज इक्विटी से निकालना था, लेकिन हम लोग कितना निकाल रहे हैं, वी आर एक्चुअली विड्रॉइंग अराउंड 3.6 लाख रुपीज बिटवीन लार्ज कैप एंड मिड कैप, एंड वी आर री इन्वेस्टिंग स्मॉल कैप में 1.8 लाख। मतलब क्या हुआ, आपने जो प्रॉफिट जो कमाया 1 साल में, वो आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, क्योंकि आपको रेशियो मेंटेन करना है। और जहां पे जो सेक्टर या जो स्कीम में परफॉर्मेंस कम आई थी, या जो सेक्टर में परफॉर्मेंस कम आई थी, मतलब दैट स्कीम इज एट द लोअर पार्ट, तो आपने उसमें पैसा भी डाल दिया। आई एम बुकिंग प्रॉफिट फ्रॉम लार्ज कैप एंड मिड कैप, एंड आई एम इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप। हम लोगों ने ये कंसेप्ट सुना है, बाय लो सेल हाई, सुना है आपने? यस 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 लिखिए प्लीज, यस लिखिए। आर यू विथ मी? Are you with me? Great.
buy low, sell high. Are we doing that? We are selling when we are booking some profit in large cap and mid cap, and we are investing when the small cap is at lower point. ठीक है, ऑटोमेटिक किया. मेरे को मार्केट का कुछ पता नहीं है, मैंने मार्केट देखा ही नहीं है, मैं सिर्फ मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ. ठीक है ना. तो ये क्योंकि मैंने पैसा निकाला है, डाला भी है, तो मैं यूनिट लेवल पे भी मैं रीबैलेंसिंग कर लेता हूँ. ठीक है, मैंने यूनिट लेवल पे भी रीबैलेंसिंग कर दिया, एक्चुअल एनएवीज लेके कर दिया. ठीक है, इस तरह से मैं एवरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैं परफॉर्मेंस करता हूँ, मैं ये एक्शन लेता हूँ. अब मैं दिखाता हूँ आपको कि एंड जनवरी 2020 के हिसाब से क्या हो गया. हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, इसलिए मैं सब कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि और भी मुझे थोड़ा कुछ आपको बताना है. जनवरी 20 हमारा सिचुएशन क्या है? रिमेंबर लिटिल लाउडर प्लीज. ओके. जनवरी 20 में एम आई ऑडिबल नाउ? बेटर? या. ओके. जनवरी 20 में इफ यू रिमेंबर हमारा स्ट्रेटजी था 100% in ultra short duration fund. So this is what we are 100% in ultra short duration fund with rebalancing and without rebalancing. तो जैसे था वैसा छोड़ दिया है, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जो वैल्यू था वो मैंने छोड़ दिया था. राइट. अभी वैल्यू देखिए आप, प्लीज सी द वैल्यूज. हम लोग वी हैव क्रॉस्ड 3.5 crore, we have reached 3 crore 75 lakh rupees by asset allocation rebalancing. And even if we are not done anything, still the portfolio would have reached 3.72 crores. मतलब जो हम लोग स्टार्टिंग में जब बात कर रहे थे, कि शायद ये पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, तो वी हैव ऑलरेडी रीच एंड दिस इज एक्चुअल डेटा. ये कुछ नंबर मैंने ऐसे रिटर्न्स नहीं लिया है, एक्चुअल एनएवी डेटा के साथ में मैंने ये काम करके देखा है. ठीक है. ब्रॉडली इसका जो रेशियो आया या रिटर्न्स आया, सीएजीआर रिटर्न्स आया जो, तो विद रीबैलेंसिंग ज्यादा डिफरेंस नहीं है. लाइक यू सी द फिगर में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, 3000 रुपए का ही फर्क दिख रहा है हम लोग को. बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, हाउ डिड वी गो थ्रू द होल थिंग. इसके लिए अभी मैं आपको एक ये पूरा स्नैपशॉट दिखाता हूँ एक ग्राफिकल फॉर्म में, बहुत इजी रहेगा हमारे लिए देखने का. आई विल जस्ट शेयर माय पीपीटी अगेन. इसका हम लोग रिजल्ट्स देखते हैं. ठीक है, इसका हम लोग रिजल्ट देखते हैं. इफ यू कैन सी द ग्राफ, आई थिंक थोड़ा सा क्लमजी दिखता रहेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था साथ में लेने के लिए. मैं आपको ये ग्राफ समझा देता हूँ. जस्ट फोकस ऑन कपल ऑफ थिंग्स. मैं जो बोल रहा हूँ खाली उसके ऊपर ध्यान दीजिए अभी के लिए. आर यू एबल टू सी द ग्राफ प्रॉपर्ली? आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? ओके, ठीक है. प्लीज फोकस ऑन द टू लाइंस, द थिन लाइंस. जो लाल कलर की लाइन है और जो ब्लू कलर की लाइन है, जो पतली लाइन है, ये दोनों के ऊपर फोकस करो. These two lines are showcasing the equity ratio, total equity ratio in the portfolio at all point of time. If you start, we had started, if you come at the right left hand side, we had started with 90%. Then slowly we came rebalancing. We did the rebalancing. पहले 3 साल 90%, फिर 75 लिया, फिर 50, 40, 30, 20, फिर 0 पे लेके आया. बराबर. लेकिन जहाँ पे मैंने रीबैलेंसिंग बिल्कुल नहीं किया है, वहां पे अगर आप देखो तो माय पोर्टफोलियो इक्विटी रेशियो हैज ऑलवेज बीन मोर देन 90% एक्सेप्ट फॉर 1 पॉइंट. इनफैक्ट इट हैज आल्सो गॉन अप टू द पॉइंट ऑफ 95%. ठीक है ना. ये ग्राफ है जो आपको देखना है राइट हैंड साइड पे. राइट हैंड साइड पे सब परसेंटेजेस है, और लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव द एब्सोल्यूट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो में एक्चुअल वैल्यूज कैसे चेंज हुए हैं. एक्चुअल वैल्यूज अगर देखोगे तो 1 करोड़ से शुरू किया था, 1.25 करोड़ दोनों साथ में आए थे. ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है यहाँ पे, आप देख रहे हो ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है. मेन डिफरेंस शुरू हुआ यहाँ पे. ठीक है. तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2015 में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन चालू हुआ. 2016 में कंटिन्यू हुआ. 2017 जैन 2017 में डिफरेंस वॉज 20 लाख रुपीज. लेकिन 2018 में बहुत बड़ा गैप है. राइट, बहुत बड़ा गैप है. ऑलमोस्ट 90 लाख के आसपास का गैप है. ये इतना बड़ा परफॉर्मेंस विदाउट डूइंग एनी एलोकेशन, विदाउट डूइंग एनी रीबैलेंसिंग. मेरा पोर्टफोलियो जो क्लाइंट ने कुछ नहीं किया रहता तो भी उसका ही वुड हैव रीच्ड 4 करोड़ 14 लाख. लेकिन मैं रीबैलेंसिंग कर रहा हूँ, फिर भी मेरा पोर्टफोलियो 3.25 करोड़ पे पहुंचा है. लेकिन सी द एंड, प्लीज वॉच द एंड लाइन.
2019 में पोर्टफोलियो अगेन फेल डाउन कंप्लीटली टू 3.7 करोड़, 70 लाख, ऑलमोस्ट 40 लाख का डिफरेंस आ गया, 45 लाख का फॉल हो गया पोर्टफोलियो में, बराबर। यहाँ पे ऑन द अदर साइड, बिकॉज आई वाज इन डेट at this point, I am all completely in debt. I was at 3.4 crores, and finally I am reaching the goal, crossing 3.5 crore, because I was completely in debt. मेरे को मालूम है कि I would reach, लेकिन शायद इक्विटी से मुझे पता नहीं था, वहां पे मैंने रिबैलेंस नहीं किया है, राइट। एक मिनट सर, क्या बोल रहे हैं? पीएमटी करके भी यही सीखने के नहीं मिलता, आप सिखा रहे हैं, थैंक्स, थैंक यू सर। लेकिन यही चीज समझनी है हम लोग को कि ये कैसे क्या करना है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप ये समझ सकते हो तो आपको समझ में आएगा कि एसेट लोकेशन का वैल्यू कैसे यूज करना है। सी, ये सब करना तो ठीक है, इससे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारे लिए, मैं जब 2015 में हूँ या 2016 में हूँ, मुझे पता नहीं कि आगे रास्ता कैसा है। आई कैन ओनली गेस बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर रिटर्न्स, प्रीवियस 10 ईयर रिटर्न्स, कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, या मार्केट हमेशा एवरेज रिटर्न देता है कि 12% 15% देने वाला ही है। बट आई एम नॉट श्योर, कि मुझे पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली आगे क्या होने वाला है अगले साल में, राइट। इसीलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ आई फॉलो, सॉरी, इसीलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं फॉलो करूं मेरा स्ट्रैटेजी, जो मैंने कुछ सोच समझ के बेसिक डेटा बना सोच के लेके ही बनाया है स्ट्रैटेजी, बराबर है। तो इफ आई जस्ट फॉलो माय स्ट्रैटेजी, आई बिलीव इन दैट स्ट्रैटेजी दैट आई हैव क्रिएटेड, एंड आई फॉलो दैट प्रॉपरली, इट विल गिव मी रिजल्ट्स। अभी ज्यादा से ज्यादा मैं मिस कर रहा, तो कहाँ मिस कर रहा था, मैंने ये रैली मिस किया, लेकिन एट द सेम टाइम आई आल्सो saved my portfolio from falling at that point, right, because I was already in debt. ऑल्सो रिमेम्बर, हम लोग रेगुलरली इक्विटी का पोर्शन हम लोग कम करते जा रहे हैं, फिर भी हम लोग पहुंचे हैं गोल पे, जहाँ की जबकि अगले इसमें प्रीवियस वाले में हम लोग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में थे टिल द एंड। in spite of reducing the equity portion, we have still managed to reach the goal. That is what is more important, don't you think so? क्या इंपॉर्टेंट है, गोल या पहुंचने का, गोल पहुंचना या द पाथ? मतलब goals are more important than returns, I think. सर गोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, रिटर्न नहीं रहेगा तो हम लोग वैसे भी कुछ नहीं पहुंचने वाले हैं, राइट। लेकिन जो बात है, हम लोग जो सोचा है हम लोग ने, हम लोग क्या उसके ऊपर बिलीव करते हैं। अगर हम लोग बिलीव नहीं करेंगे तो क्लाइंट कहाँ से बिलीव करेगा? ट्रू। तो हम लोग को वो दिखाना है क्लाइंट को कि हम लोग, लेकिन दिस इज नॉट रैंडमली ड्रिवन, राइट। हम लोगों ने कुछ थॉट प्रोसेस डाला था, हम लोगों ने अपना चार्ट बनाया था, हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट मैट्रिक्स बना के रखा है, हम लोगों ने प्रोसेस बना के रखा है, उसके बेसिस पे ही हम लोग ये सब बोल रहे हैं या करने वाले हैं, बराबर है। और हमेशा ये जरा याद रखना, ये सब जो एक बनेगा आपका जो चार्ट वगैरह बनेगा ना, दैट विल बी ऑलवेज एक्टिंग एज अ गाइडलाइन फॉर यू एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम। आप क्लाइंट को तो बोल रहे हो दिखाने के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन whenever you are doing this reallocation exercise and all those things, that graphs or the chart, the investment philosophy framework, or that the portfolio, the product allocation matrix, these will be acting as a guidance point for you कि ये पॉइंट में मुझे यही करना है। मेरा गोल अभी 10 साल से इट हैज कम डाउन टू 3 इयर्स, तो मुझे अभी ये वाला ही प्रोडक्ट यूज करके काम करूंगा, है ना। दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। नहीं, see again, this is, I am not here to showcase any product. I am, like I said, this is purely just a strategic part that I am sharing with you. I am not here to tell anything else. Okay, मेरा काम यही है, सिर्फ ऐसा लोकेशन बिलीव करो, वो मेरा मोटिव ही यही था। ये तो अगर आपने वो डेटा अभी, मैंने पूरा 10 साल का जो मैंने अभी एक्सेल फाइल दिखाया था आपको, वहां पे मैंने हर एक डेटा पॉइंट किया था, वो सब डेटा कलेक्ट करके ये ग्राफ बनाया है, ठीक है। So we will move forward. Are you okay with this graph? ये समझ में आया ग्राफ आपको, इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया? Yes, great, ठीक है। So let's go for the final part. In case of market fluctuation in the end, portfolio rebalancing technique reduces risk to achieve. Exactly, sir. Exactly. So let's go forward. Finally, so we are almost at the end of the presentation. Finally, we will again check out whether we have learned all those key learnings or not, what we had shared at the start. Identifying top clients, T20 principle, सही है, हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया, बराबर है। The journey is as important as the end goal.
मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हैविंग द स्ट्रेटेजी टू रीच द गोल, करेक्ट? डू यू एग्री? डू यू एग्री? Setting right expectations through some tools, right? So like I shared two things with you, two basic tools, product allocation matrix and investment philosophy framework. ये दो टूल अगर हम लोग ठीक से बना सकते हैं तो वी कैन ऑलवेज, दैट विल ऑलवेज एट अस गाइडिंग प्रिंसिपल्स, एट द सेम टाइम help us set right expectations with the clients. Do you agree? Will these two tools help you? Please yes or no लिखिए. Great. And last but not the least, how to stay the course that will lead us to the end. So हम लोग का कोर्स क्या था, हम लोग का गोल क्या था, 3.5 करोड़ पहुंचने का. कैसे पहुंचने के मुझे पता नहीं है, मैंने कुछ स्ट्रेटेजी सोची थी बेस्ड ऑन सर्टेन इनपुट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिचुएशन मार्केट में, जो थोड़ा बैक ट्रैकिंग करके जो देखा था रिटर्न्स आ रहे थे उसके बेसिस पे मैंने बना दिया आज का. लेकिन वो मैं रीबैलेंसिंग कर रहा हूँ, रेगुलर रिव्यू कर रहा हूँ, रीबैलेंसिंग कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे ही मैं पहुंचूंगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं उस वो जो थॉट प्रोसेस था मेरा उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, है ना? That is more is important for me to help, which is going to help me reach the goal. And last but not the least, actions and inactions have their own merits. Actions and inactions मतलब जो हम लोग ने रीबैलेंसिंग किया वो हमारा एक्शन था. दूसरा वाला पोर्टफोलियो जो स्ट्रैटेजी था हमारा, जहाँ पे हम लोग ने हमने कुछ एक्शन लिया ही नहीं है, बना के छोड़ दिया, वो भी अपने आप परफॉर्म कर रहा है. लेकिन उसके लिए आपको कन्विक्शन चाहिए था कि इक्विटी में इतना टाइम ऐसे ही छोड़ सकते हैं. अगर कन्विक्शन नहीं है, अभी यही सोचो कि सिनेरियो देखो, अभी क्लाइंट के साथ बात करते हैं, ठीक है? अगर क्लाइंट के साथ ये पॉइंट पे बात करते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्लाइंट बोलेगा तू रिव्यू कुछ नहीं करता है, तू कुछ भी नहीं करता है, तो मैं तेरे साथ क्यों बैठूं, 1 करोड़ रुपए तेरे को देके क्यों बैठूं? अभी यहाँ पे बिकॉज ऑफ रीएलोकेशन जो आप रीबैलेंसिंग हर साल करने वाले हो, देयर इज डिफॉल्ट सम और द अदर एक्शन व्हिच नीड्स टू बी टेकन ऑन द पोर्टफोलियो. कुछ ना कुछ निकलेगा, कुछ ना कुछ जाएगा. एट द सेम टाइम जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि मैंने एक रेस्ट्रिक्शन रखा था, मैंने स्कीम चेंजेस नहीं किया है. सो यहाँ पे अगर शायद मैं स्कीम चेंज करता, कोई और स्कीम लेता था, तो मेरे को यहाँ पे रिजल्ट और भी अच्छे आ सकते थे पॉसिबली, अगर मैं रिव्यू करता हूँ रेगुलरली तो. करेक्ट? एग्रीड? यस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि भाई ये सब करना है या नहीं करना है. एंड दैट इज वेयर क्लाइंट को एंगेज करने के लिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये पोर्टफोलियो रिव्यू. इसीलिए पोर्टफोलियो रिव्यू करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, और उसके थ्रू इट बिकम्स नॉट ओनली एन एंगेजमेंट टूल बट इट विल आल्सो हेल्प अस शोकेस आवर थॉट प्रोसेस, आवर फिलॉसफी अगेन एंड अगेन टू द क्लाइंट. क्लाइंट भूल जाएगा, और वही हमारा काम है कि सर ये मैंने आपको पहले बताया था. जब आप उसको पिक्चर दिखाओगे उसको हमेशा याद आ जाएगा, अरे हाँ ये तो तुमने बताया था. एग्रीड? पिक्चर का जो इमेजरी बनेगा उसके पास, वो उसको हमेशा याद रहेगा. जब आप दोस्तों अगेन दिस इज अबाउट 20% ऑफ योर टॉप क्लाइंट. तो यस. और जो टॉप के 20% क्लाइंट है, वो क्लाइंट कैसे होते हैं सर कि उनको कहीं ना कहीं कुछ चाहिए कि भाई ये बंदा कुछ कर रहा है हमारे लिए. बहुत सारे टाइम क्या होता है, हम लोग अगर कुछ चेंज नहीं करते हैं ना तो भी प्रॉब्लम है. एग्रीड? तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि रिव्यू होना जरूरी है. और दिखना चाहिए क्लाइंट को, उसको क्लाइंट को दिखना चाहिए कि आप रिव्यू कर रहे हो, उसके लिए भी है. तो ये रैंडमली ऐसे ही निकालने के लिए निकालना नहीं करेगा. यस, मेहनत करनी पड़ेगी. ये सिर्फ निकालने के लिए निकालना है नहीं है हम लोग को. वी आर फॉलोइंग सम स्ट्रेटेजी. ये क्यों निकालना है, हमारे पास एक रैशनल है, बराबर है. तो दैट इज वेयर इट इज गोइंग टू हेल्प अस. ठीक है? गोइंग फॉरवर्ड फास्ट एंड लास्ट, रिवाइज. लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे. Requirements for strategy. What are the requirements for our strategy? Suitable portfolio, product matrix and investment philosophy, advisors investment philosophy framework. ये दो बेसिक चीज लगने वाली है हम लोग को. कौन सा प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं, कैसे यूज करने वाले हैं, और कितने रेशियो में रखने वाले हैं. तो एसेट लोकेशन कैसे करने वाले हैं, उसका ये दो चीज हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्रीड? नेक्स्ट इज फ्रेमवर्क फॉर द पोर्टफोलियो बेसिस एंड एसेट लोकेशन स्ट्रेटेजी. हम लोग ये जो प्रोडक्ट वगैरह है उसको कैसे यूज करने वाले हैं, कैसे एसेट लोकेशन बनाने वाले हैं, मेंटेन करने वाले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए. राइट? तो ये एक पार्ट हो गया हमारे लिए. हम लोग देखा कि उसका कैसे यूज होने वाला है.
ठीक है. Advisors value add designing a strategy for creating a customized portfolio and diligently following the same. हम लोग का वैल्यू एड क्या रहा यहाँ पे, हम लोग ने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसको दिखाया कि सर हम लोग ये फॉलो करने वाले हैं, ऐसे हम लोग अचीव करने वाले हैं आपके गोल, और उसको स्ट्रैटेजी को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं. यहाँ पे हम लोग का कहाँ ये क्या मैच हो गया, हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी की बात की थी, हम लोगों ने बताया बोला था कि शो योर प्रोसेस एंड फॉलो देम डिलिजेंटली, शो योर बिलीव्स एंड फॉलो देम प्रॉपरली. तो ये अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग, तो क्या ये बेटर नहीं है ऑटोमेटिकली. यहाँ पे ये जो फैक्टर था, इसमें मैंने मार्केट में कुछ नहीं देखा था, ना मैंने पी देखा, ना मार्केट का वैल्यू क्या है. मैं खाली वो स्कीम का वैल्यू उठाया, जो एनएवीज थे वो डाले मैंने, और ये मैंने स्ट्रेटेजी वर्क की है, उसके ऊपर से मेरे को पूरा रिजल्ट निकला है. ठीक है, तो अगर पी वगैरह करना है वो सब वो टैक्टिकल हो गया. यहाँ पे मैंने टैक्टिकल तो फॉलो ही नहीं किया है, ये प्योरली स्ट्रेटेजिकल पार्ट था. ग्रेट. ओके, आर यू ओके विद दिस? ठीक है, चलो सर, तो फिर मिलेंगे चलते चलते. दिवेश भाई, we can have Divesh bhai, we can have polls as well now. Anup is back. Okay sir, we can definitely. दोस्तों एक अभी पोल आएंगे हमारी तरफ से. अनूप, are you there? अनूप, please launch first poll. हेलो. हाँ, पहला पोल शेयर करो अनूप. नहीं, वो उसमें जो है एक सिंगल पोल आई हैव क्रिएटेड, तो उसमें तीनों के तीनों क्वेश्चन उसी में ही होंगे. Okay, no issues. Share it. Are you able to see it? Yes, first one is there. All three are together only. Yeah, all three are together. दोस्तों आपका जवाब दीजिए प्लीज. Anup, can you share the result on the screen? हाँ, बट अभी किसी ने दिए नहीं है. Okay. Friends, please vote. Let us also understand, and you can also understand what is happening actually. ये हमको बीच में करना था, हर एक सेशन के बीच में, लेकिन टेक्निकलिटी इश्यूज की वजह से हम नहीं कर पाए. प्लीज वोट. ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है. Yeah, Anup, let's close the poll and you can share the result. अभी 50% लोगों ने की है पोलिंग. Should I end the poll? Yeah, you can end. अभी चल रही है लेकिन पोलिंग. ठीक है. Let's wait for half minute. दोस्तों मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा. दिवेश भाई बहुत अच्छे कैलकुलेटर्स, एक्सेल शीट्स में बहुत अच्छे हैंडल करते हैं और इसी तरह से कुछ फैंटास्टिक चीजें समझाते हैं. तो आगे जाके इनके इंडिविजुअल वर्कशॉप भी होते रहते हैं, तो जब भी ये फ्यूचर में अपना वर्कशॉप लॉन्च करेंगे तो हमें जरूर से बताएंगे. तो वी कैन कीप इन टच विद हिम. उनके डिटेल्स यहाँ पे है, आप ले सकते हैं. कभी भी इनका सेशन रहेगा तो हमारे ग्रुप में उसका इंफॉर्मेशन आएगा तो हम आपके साथ में शेयर करेंगे. लेकिन दोस्तों ये जो कहने का मतलब है कि हमको प्रोसेस है, हमारा प्रोसेस बनाना पड़ेगा और वो क्लाइंट के साथ में कम्युनिकेट करते रहना पड़ेगा. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है. तो अगेन हम कुछ कर रहे हैं ऐसा क्लाइंट को दिखाना पड़ेगा. I hope I have been able to add some value to all of you today. आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा. I guess कुछ नया चीज जो आपको पता नहीं था, ऐसा कुछ सीखा है आपने, तो प्लीज डू शेयर विथ मी आल्सो. Yeah, you can connect with दिवेश. उसका नंबर आप दिवेश भाई का अपलोड कर सकते हैं. And let's have some questions, Divesh bhai, as well. Sure. Friends, you can raise your hands. We will take only 5 to 7 questions, not more. Should I end the polling? Yeah, Anup, please end the poll and share the result. These are the results.
Great. Okay. Let us just quickly have a look at the results. Do you perform regular portfolio reviews for your clients? And if yes, in what frequency? I think that was the question here. In what frequency? So 14% say no, I don't do regular reviews. Okay. I hope, sir, ये जो 14% है, 32 लोगों ने बोला है, I hope this is also going to help you understand why you should do regular reviews. Yes, quarterly, great. 10% बोलते हैं, 12% बोलते हैं, half yearly, 34% से annually, and 30% से only when client ask. So जो first and last point है, जो only when client ask and no, I don't do regular reviews. I hope आपको समझ में आया रहेगा. How you can connect better. Again, मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ वापस, ये आपके टॉप क्लाइंट के लिए खास करके करना है. सबके लिए करो नहीं करो, आप आपके टॉप क्लाइंट्स के लिए ऐसा क्या करते हो अलग से जो आप बाकी सब क्लाइंट के लिए नहीं करते हो, क्योंकि वो करना पड़ेगा दोस्तों, टॉप 20 के लिए करना पड़ेगा. एग्जैक्टली जो टॉप 20% आपके क्लाइंट से आपको 80% रेवेन्यू लाके दे रहे हैं, उनको बचाने के लिए, आपके पास रखने के लिए आप एक्स्ट्रा ऐसा क्या कर रहे हो उनके लिए, वो आपको सोचना पड़ेगा. सो आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ से समझ में आया रहेगा, बेटर थोड़ा थॉट प्रोसेस बना रहेगा आपका. Second question was, do you have the following in written format for creating a client's portfolio? I have okay, 14% बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है बना हुआ, 17% बोलते हैं प्रोडक्ट एलोकेशन मैट्रिक्स बना हुआ है, वेरी गुड. 14% बोलते हैं दोनों है, और 55% बोल रहे हैं नहीं है. ओके, दे डोंट फॉलो एनी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी. सो आई वुड रिक्वेस्ट, आप बाकी सबके लिए करे नहीं करे, लेकिन आपके टॉप 20% क्लाइंट्स के लिए, इनफैक्ट अगर ये आपने जो पोर्टफोलियो, आपका जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है और जो फिलोसॉफी फ्रेमवर्क है, अगर आपने ये वन टाइम, ये आपका वन टाइम काम है, जब आप एक बार बना रहे हो आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस अनटिल आप ड्रास्टिकली कुछ और नया सोचने बैठे हो. ठीक है, तब तक आपका ये वन टाइम फ्रेमवर्क अगर आपने बना के रख दिया है और आप हर क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर सकते हो, आपको भी समझ में आएगा क्लाइंट क्या सोचता है वो टाइम पे जब आप ये डिस्प्ले करते हो. ठीक है ना. So it is a good point also to start up your setting up your investment, setting up the expectations with the client right in the first meeting itself. What parameters do you refer while doing the portfolio review? Okay, 7% बोलते हैं I don't do the portfolio review at all. 27% say only scheme performance. 19% say current and planned overall asset allocation scheme performance, and 48% say client situational changes. Sorry, current planned and overall asset allocation and scheme performance. Okay, great. So let's have 5 to 6 questions, Divesh bhai. Sure. I'm taking first question from Samir Desai, Dahod, Gujarat. Yes, Samir bhai. Samir bhai, you are unmuted. Unmute कीजिए अपने आप को. सर, आपने स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी तरह से बताई. कुछ नया जानने को मिला. स्ट्रेटेजी तो हम भी करते हैं, मगर कुछ हटके आपने बनाई स्ट्रेटेजी. सर स्ट्रेटेजी ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन प्लीज गो अहेड सर. हाँ, मगर जो नहीं, आपने जो बनाई ना स्ट्रेटेजी, जिस तरह से दो पार्ट में बनाई आपने, एक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म और एक एसेट क्लास वाइज. हाँ, तो अगर सर आप वो जो एक्सेल है, हाँ, वो अगर शेयर कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम जो स्ट्रेटेजी हमारे हिसाब से बनी है उसके अंदर वो थोड़ा हमको अच्छा रहेगा. सर ये एक्सेल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सेल्स है, तो वो शेयर करने के लिए नहीं है आपके साथ में. और ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो 10 साल के हिसाब से है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस टू डू इमीडिएटली. ठीक है, क्योंकि उसमें सब लाइव डेटा डाला हुआ है. तो अगर वो मैं खाली फॉर्मेट डाल दूंगा तो कुछ मतलब नहीं बैठेगा आपको, क्योंकि उसमें जो कैलकुलेशन डाले हुए वो सब लिंकिंग वाले कैलकुलेशंस है, तो सिर्फ वो शेयर करके कोई मतलब नहीं बैठने वाला है. नहीं, कैलकुलेशन नहीं चाहिए, जस्ट खाली हमको वो स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई है ना, वो खाली एक बार देखने के लिए. नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ सर कि उसका आपको शेयर करके ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला है. मेन चीज था कि एसेट लोकेशन बराबर जम रहा है कि नहीं जम रहा है, मुझे वही चेक करना था, और उसके लिए मैंने ये बनाया था. ठीक है, तो यहाँ से मैंने दो चीज देखी, अगर कुछ भी नहीं करते तो भी कहीं ना कहीं तो कुछ पहुंचेगा. और दूसरा पार्ट था कि मेरा वैल्यू एड कैसे दिखता है एडवाइजर क्लाइंट को, तो जहाँ पे मैं रेगुलरली कुछ ना कुछ रेगुलर बेसिस पे करता हूँ. तो आप जो भी स्ट्रेटेजी बनाते हो, जो भी करते हो, आप बेसिक लेवल का बनाओ. अच्छा, मैं एक ये पॉइंट जब बोल रहे हो ना, तो मैं आपको बताता हूँ एक इम्पोर्टेंट पार्ट, एक इम्पोर्टेंट फाइल दिखाता हूँ आपको कि जो आप एक्चुअली पोर्टफोलियो रिव्यू कैसे करोगे. आप जब पोर्टफोलियो करते हो तो एक्चुअल रिव्यू कैसे होना चाहिए, वो आपको इम्पोर्टेंट फाइल एक शेयर करके दिखाता हूँ. जस्ट अ मिनट प्लीज. फ्रेंड्स, नो फर्दर हैंड रेज. इससे आगे जो भी हाथ ऊपर करेगा उसके सवाल नहीं लिए जाएंगे. I'll just share my screen. Yes, it is visible.
आपको मेरी एक्सेल दिख रही है? नहीं नहीं, अभी एक्सेल नहीं अभी आई है। ओपन नहीं हुई है, अच्छा, स्क्रीन आनी शुरू हो गया। यस, एक्सेल इज देयर। यस या ठीक है। या फ्रेंड्स, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरा स्ट्रैटेजी क्या है? मेरा स्ट्रैटेजी था 90-10 फर्स्ट ईयर, ठीक है? फर्स्ट ईयर बोलो, सेकेंड ईयर बोलो, मेरा स्ट्रैटेजी था 90-10 का रेशियो रखना है मुझे। आपको ये अलग अलग चीज है, ये वो सेम फॉर्मेट के लिए नहीं है, सेम प्रॉब्लम के लिए नहीं था। ये मैंने किसी और चीज के लिए बनाया था, क्लाइंट के लिए, जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये 90-10 का रेशियो रहना चाहिए मेरा। ये मेरा लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप में सब में मैं एलोकेशन करता हूँ। कितना रेशियो करता हूँ? लार्ज कैप में 25, मिड कैप, लार्ज मिड कैप में 15%, मल्टी कैप में 15%, मिड कैप में 20%। ये मैंने स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है? डेट में तो लिक्विड एंड अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में 30%, लो ड्यूरेशन में 30%, शॉर्ट टर्म में 30%, कॉर्पोरेट बॉन्ड में 10%। अभी भाई यहाँ पे चेक करता हूँ कि भाई इसका एक्चुअल एलोकेशन, ये पोर्टफोलियो जो है क्लाइंट का, उसमें एक्चुअल एलोकेशन इक्विटी रेट कितना है। तो 90-10 मुझे चाहिए। रिक्वायर्ड वेटेज इज दिस इज व्हाट आई शुड बी हैविंग। और उसके लिए मेरे पास क्या करना पड़ेगा? तो 3.5 लाख रुपया मुझे इक्विटी से निकाल के डेट में लाना पड़ेगा मेरा रेशियो बनाने के लिए, ठीक है? उसमें फिर मैं ये बोलता हूँ कि भाई अगर मुझे कुछ ऐड करना है बाय एसआईपी या फिर लमसम कुछ आगे जाके ऐड होता है, तो भी मैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ये वाला फॉर्मेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अपना यूआरएन भी मेंटेन होना चाहिए। उसमें फिर मैं देखता हूँ कि अभी लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, ये एक्सेल है, नंबर्स है, बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं आपको साथ में। लेकिन अगर आपको रिव्यू करना है तो प्रॉपरली समवेयर आपको इस तरह कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। करंट वैल्यू क्या है, जितने भी मेंबर होंगे आपको उसी हिसाब से आएगा। परसेंटेज आपको क्या चाहिए, आपको रिटर्न करना है, क्या डिफरेंशिएशन है उसमें, ईयर एंड में आपको क्या रेशियो रखना है। और साथ में अगर आप रीबैलेंसिंग करते हो कुछ एसआईपी से या फिर लमसम कुछ डालना है, तो उसका भी बैलेंसिंग करने के बाद क्या सिचुएशन होगी आपके लिए। ये वाला पार्ट, जो ये जो नंबर दिखता है आपको, तो यहाँ पे दिख रहा है को 3.5 लाख रुपया निकालना है। लेकिन 3.5 लाख कहाँ से निकालना है? तो 2 लाख रुपया निकल रहा है इंटरनेशनल से, 60,000 निकल रहा है लार्ज कैप से, 30,000 रुपया निकल रहा है लार्ज एंड मिड कैप से। ये मैं डाल रहा हूँ डेट में। डेट में भी मैं कहाँ डालूंगा? तो इनफैक्ट अगर डेट में डालोगे तो डेट में भी मैं 2 जगह से निकाल रहा हूँ पैसा, और बाकी मैं बाकी जगह पे डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस तरह का रेशियो चाहिए। ये स्ट्रक्चर है आपका, जो आप पूरा इक्विटी डेट लेवल पे एक्चुअली, अगर ये मैं स्कीम पे तो पहुंचा ही नहीं हूँ, उससे पहले का फ्रेमवर्क है मेरा कि मैं कैटेगरी लेवल पे कैसे निकालूंगा, कितना पैसा कौन सी कैटेगरी से पहले निकालूंगा। फिर मेरा नेक्स्ट लेवल पे आता है कि मैं स्कीम लेवल पे क्या निकालता हूँ, ठीक है सर? आपको जो एक्चुअल करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज अ लॉट ऑफ डिटेलिंग। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, स्पेसिफिकली मैंने बोला कि सिर्फ 20% क्लाइंट के लिए करिए। और ये जो आप पूरा फॉर्मेट अगर दिखाएंगे उनको, तो आप सोचो कि उसको वैल्यू कितना बढ़ेगा इसके लिए आपका। सही है। सबके लिए पॉसिबल नहीं होने वाला है, ये आपके 100% क्लाइंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा। इट इज डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग। सबको ये वैल्यू नहीं समझेगी और सबके लिए मतलब भी नहीं बैठेगा। इसीलिए कुछ मतलब नहीं बैठेगी। ये स्पेसिफिकली आप करो तो सिर्फ टॉप 20% के लिए ज्यादा करके पहले फोकस करो, बाकी सब बाद में करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। Yeah, we are taking next question from Ishan. Ishan, are you there? Unmute yourself and ask your question. Ishan, please unmute yourself. I think Ishan is not there. Jagdish ji, raise your question. सर मेरा क्वेश्चन है, अभी सेबी का मैंडेट आया है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन नॉट यूज फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट और फाइनेंशियल प्लानर nomenclature. In this background, how we can draft this kind of planning to the customers? सर, हम लोग नाम, एक चीज है, देखो, नाम लेना, क्या नाम से बात कर रहे हैं वो एक अलग बात हो गया। और ये अगर आपके पास अभी बड़े क्लाइंट्स है, उसके लिए आप क्या करोगे? उसको बोलोगे रैंडम इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, क्या आप ऐसे कर सकते हो? नहीं, when regulator is telling you should not do any planning unless and until you are investment planner. एक मिनट सर, regulator is not saying you cannot do planning. Regulator is saying that you cannot give advice or you cannot give recommendations. ठीक है? मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन, मैं स्कीम लेवल पे आया ही नहीं हूँ ना, मैं तो ब्रॉड स्ट्रेटेजी दिखा रहा हूँ। करेक्ट सर? स्कीम लेवल पे मैं पहुंचा ही नहीं हूँ, मैं स्कीम का रिकमेंडेशन दे नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ मेरी स्ट्रेटेजी दिखा रहा हूँ। So strategy, MFDs can do strategy. स्ट्रेटेजी तो आप कुछ भी बनाओ सर। सी, अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस सर।
एडवाइस जो रेगुलेटर बोल रहा है कि वो आप ये नाम यूज नहीं कर सकते हो, पर्टिकुलर नाम आप यूज नहीं कर सकते हो। एट द सेम टाइम दे आर सेइंग कि बेसिकली अगर आपको एडवाइस करना है, अगर आपको एडवाइस देना है कि ये एक्शन लो, ये स्कीम में से इतना पैसा निकालो या ये स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए एडवाइजर को, उसके लिए वो बोल रहा है कि अगर आपको एडवाइजिंग देना है तो आपको आरआई बनना पड़ेगा। एज एमएफटी यू कैन नॉट डू दैट। आप एडवाइस नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि ये आईडीएफसी लो म्यूचुअल फंड में डालो पैसा, ये आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। ऐसा पार्ट वो बता रहा है आपको रेगुलेटर। लेकिन अगर सर दिस इज इन एक्सेल शीट, जो भी है एक्सेल शीट में, दिस इज पार्ट ऑफ एन एडवाइस ओनली। नहीं सर, मैं आपको सी एक बात और एक बात समझिए सर, ये सब आप जो भी कर रहे हैं, हम लोग अभी भी करने वाले हैं। मुझे मेरा काम है कि मुझे मेरा क्लाइंट रिटर्न करना है, ठीक है। ओके, सबसे बेसिक चीज है, जो मेरे टॉप क्लाइंट्स है, मुझे उनको रिटर्न करना है। उनको रिटर्न करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ उनको सर्विस देनी पड़ेगी। अभी उनके लिए मैं कैसे पोर्टफोलियो, आज उनको पोर्टफोलियो बनाना भी है, तो यार उन्होंने कुछ जो भी किया है उसको मुझे दिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये वाला मॉडिफाई, ये मैं उसको बता सी आप ये स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको दे दो। आप बोलो कि हाँ सर आपको क्या लगता है, आपको ये करना चाहिए, अगर आपको ठीक लगता है तो आप बोलो, आप मेरे को बोलो कौन सी स्कीम में क्या करना है, मैं कर दूंगा। ये बना के देने में अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, कहीं ना कहीं एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो आ चुका है, ये अभी नहीं आया है। ये एमएफडी और आरआई का बाइफर्केशन आज नहीं आया है, ये 2013 में आ चुका था। आज जो आया है वो थोड़ा एडवांस वर्जन आया है, अभी राइटिंग आया है। नहीं सर, ये बात तो था पहले, सिर्फ डिफरेंशिएशन ये पार्ट था, अभी नाम आप क्या यूज नहीं कर सकते हो वो आया है, ठीक है। बट आई थिंक दैट इज स्लाइटली, आई थिंक मिलिंद भाई ये थोड़ा कन्वर्सेशन इज, इसमें बहुत सारा डिबेट हो सकता है आगे पीछे। सर आपको आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट दिस इज नॉट डायरेक्टली इम्पैक्टिंग दिस पार्ट, लेकिन ये जो है हम लोग को वैल्यूएट करने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा। चलो ये छोड़ दो, आप वैल्यूएट कैसे दिखाओगे आपके टॉप क्लाइंट्स को, वो सोचो। दिस इज वन ऑफ द वेज, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। थैंक यू। Okay. Tejas bhai, please ask your question. Yeah, Tivesh, 1 second. Can you hear me, man? Can you hear me? Yes, Tejas bhai. Yeah. Wonderful presentation, Tivesh. It's a very eye-opening presentation. A lot of new things to learn and understand. Thank you, sir. I have been doing this type of a thing also, but not to this level. But what happens is that a lot of time gets used up in this type of a planning and Excel. So do you use specific tools or Excel format or something, or can you just show me this Excel sheet जैसे आपने बनाया है? So see, getting data from the software is easy, but then using it in the software and then ये जब करने के लिए क्या एक क्लाइंट के लिए करते तो तकलीफ नहीं है, लेकिन 10-15 क्लाइंट के लिए करते तो बहुत टाइम चला जाता है। सर आपको यही सोचना है कि आप वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हो थ्रू आउट द ईयर। सी सब क्लाइंट का एक साथ करने मत बैठो, पहली बात, ठीक है। ओके। पहली बात है ये है कि सब क्लाइंट का एक साथ एक ही महीने में करने का बोझा मत लो। ओके। आपको कन्वर्सेशन ये लेना है, सिर्फ बना के नहीं देना है उसको, उसके हाथ में उसको पूरा समझाना पड़ेगा, राइट। और जो मैं दिखा रहा हूँ दिस जस्ट वन पार्ट, एक्चुअली जो उसका आगे पीछे वाला पार्ट अगर आप फाइल में देखा नहीं है आपने, उसका आगे पीछे वाला पार्ट भी बहुत है। सो ब्रॉडली अगर आप ठीक से, अगर अच्छे से आपको एक्सेल आता भी है, तो ब्रॉडली टू क्रिएट ऑल दिस थिंग वर्किंग आउट इट विल टेक इजीली 3 to 4 आवर्स, ठीक है, एक क्लाइंट के लिए, एक पोर्टफोलियो के लिए। अभी ये काम करना डेफिनेटली हम लोग सबके लिए नहीं कर सकते हैं। yes. एक चीज ये है कि आपको सोचो कि ये स्पेसिंग कैसे करोगे। एक महीने में आप 4 से 5 क्लाइंट का ही इस तरह काम करेंगे, बड़े वाले क्लाइंट का। इनफैक्ट दिस जनरली एप्लीकेबल कि आप आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हो अक्रॉस द क्लाइंट्स, ठीक है, उसके हिसाब से आप ये सोच सकते हो उसके करने के लिए। मैं आपको ये फाइल डायरेक्टली तो नहीं दिखा सकता हूँ, मे बी वी कैन थिंक ओवर सम अदर वेज टू चेक इट आउट, वी कैन डिस्कस इट ओवर द कॉल, ठीक है ना सर। जस्ट टू ऐड, ये आपका जो है इसमें पिवट टेबल्स और वो सब कैसे टाइप का, तो जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग हाउ वी कैन सी whether different options are there, no? So, yeah, so it would be nice. So this is a pivot table and a slicer format that I use to check it out. So like the slicer benefit is that if I just click on one thing, so like this AMC, if I check, it will give me only the axis AMCs and it will actually tell me. So how do you get this data like in this Excel? That is the bigger question, because see Excel में एक बार आ जाता है format proper, तो I think sir ये सब Excel का structure है। I think like Milind bhai said, I may be planning a workshop on something like this. you use any
अभी के लिए वर्कशॉप वगैरह कुछ करने का सोचेंगे, अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स कुछ मिल रहा है, डेफिनेटली इफ एवरीबॉडी वांट्स टू लर्न, आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट समथिंग लाइक दैट। सर जस्ट लाइक ये सब में डेटा कहाँ से आता है, दैट इज माय क्वेश्चन। नहीं डेटा तो ये रहा ना, पोर्टफोलियो आपका जो है, आपका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, पोर्टफोलियो जो फाइल है आपका, आपने जो रिपोर्ट निकाला है, एमएफ रिपोर्ट है, ये उसमें से डेटा निकाला है, ये मेरा पोर्टफोलियो रिपोर्ट है, ठीक है। आज का होल्डिंग्स है, मेरा करंट क्लाइंट का आज का होल्डिंग है, यहाँ से वो पूरा सब बना हुआ है। ओके ओके ओके। कुछ चीज नहीं आपको ऐड करनी पड़ेगी, कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, वो डेटा प्रेजेंटेशन, डेटा स्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा, उसके बाद यू कैन एक्चुअली वर्क आउट ऑल दोस थिंग्स। ओके ठीक है, यस, नाइस नाइस, इंटरेस्टिंग, थैंक यू। विकास जी अपना सवाल पूछे सर। विकास पेड़िया जी। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए विकास जी। ये मेरे दिमाग में था बहुत दिन से, मैं करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन ये आपका जो आपने दिखा दिया ना, ये मेरे लिए आई ओपनिंग हो गया। मैं कुछ इस तरह के करने के लिए कोशिश करूंगा, इसके लिए थैंक यू। और एक चीज मैं बोल रहा था, जैसे रीबैलेंसिंग करते हैं, सबसे बड़ा चीज होता है वॉलेटिलिटी सर। अगर हम लोग एसेट एलोकेशन करते हैं तो वॉलेटिलिटी को बीट कर ले, भले हम लोग रिटर्न लास्ट में ये सेम हो, लेकिन वॉलेटिलिटी क्लाइंट को मार देता है, वहीं पर बहुत ज्यादा दिक्कत है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बस थैंक यू करने के लिए मैंने आपको फोन किया था। माय प्लेजर, थैंक यू विकास भाई। नाउ वन मोर विकास कदम जी। हेलो। हाँ जी विकास जी। दिवेश जी, वेरी एक्सेलेंट सेशन, थैंक यू सर। बहुत अच्छा इंसाइट आपने दिया है। ओनली द क्वेश्चन एवरीवन इज आस्किंग इज टू शेयर दिस एक्सेल फाइल। वो अगर एक्सेल फाइल हो ना, तो हम भी उसमें कुछ थोड़ा कर सकते हैं, और अपना भी थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन डाल के ना, तो कई सुटेबल कौन से क्लाइंट को क्या करना है वो कर सकते हैं। बट ओवरऑल बहुत अच्छा सेशन था ये, और आपने कुछ वैल्यू एडिशन तो हमारे पास किया है इसका। थैंक यू सर। अच्छा है, मुझे वही वो सुन के अच्छा लगा कि वैल्यू ऐड हुआ है आपके लिए। हुआ है एक्सेल, ये एक्सेल फाइल्स का मैं बताता हूँ आपको, ये सब फाइल्स में मल्टीपल लिंक्स है, एंड इट विल बी डिफिकल्ट अगर डेटा चेंज होता है ना, तो कंपैटिबल नहीं बैठेगा। तो थोड़ा फॉर्मेट्स थोड़ा पता बना चलेगा हुआ है हमको। सर। नहीं सुनिए, ये सब है ना, केस स्पेसिफिक बना हुआ है, ठीक है। तो ये जनरली मैं ऐसे दे दूंगा ना, तो आपका काम भी नहीं आएगा। स्ट्रक्चर ऐसे दे दूंगा तो भी मतलब नहीं बैठने वाला है, तो प्रॉब्लम उधर आएगा आपके लिए। मतलब चाकू मिल जाएगा, लेकिन चलाना कैसे वो मालूम नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली सर। मैं आपको चाहिए तो थोड़े इसका एक थैंक यू। मैं देखता हूँ इसमें कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह बना के कुछ अगर भेज सकता हूँ, तो एक खाली टेम्पलेट देखने के लिए आपको समझ में आएगा, ऐसा कुछ मैं बना के ट्राई करता हूँ। ठीक है, ग्रेट, ओके, थैंक यू। वेलकम सर। मिहिर माली फ्रॉम सूरत। हेलो। यस सर। सर जी, एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन, यानी काफी कुछ आपने नया कुछ सीखा हमको, तो पहले तो आपको शुक्रिया हमारी तरफ से। और दूसरी एक चीज की सर, एक चीज है कि काफी सारे लोग एसेट एलोकेशन करते हैं, काफी सारे फंड ऐसे हैं जो एसेट एलोकेशन करते हैं, राइट। तो ये एक मेरा क्वेश्चन था कि काफी सारे फंड भी ऐसे हैं कि जो हमें एसेट एलोकेशन करते हैं, और दूसरा एक चीज के काफी सारे सॉफ्टवेयर, यानी जैसे मिस्टर बॉन्ड वाला एक सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली वो लोग कुछ ना कुछ एसेट एलोकेशन करते हैं, इक्विटी में से निकाल के और दैट में चले जाते हैं। तो क्या ये हमारे लिए एडवाइजेबल है? ये आप जो बता रहे हैं वो काफी अच्छी चीज है, इससे क्लाइंट को हमारी वैल्यू पता चलेगी। लेकिन अगर दूसरे जो क्लाइंट्स है हमारे, उसके लिए हम कुछ ऐसा मिस्टर बॉन्ड वाला प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, अगर आप क्या एडवाइस करते हैं? सर अगेन यहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस, फिलोसॉफी कैसे चलता है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर आप मेरे को पूछो तो आई डोंट एक्चुअली फॉलो और हैव बैलेंस फंड्स, क्योंकि वहाँ पे बैलेंस फंड मेरे लिए, ये मेरा थॉट है, मैं सबके लिए नहीं बोल सकता हूँ, मैं मेरा थॉट बोल रहा हूँ। बैलेंस फंड वगैरह में होता है इक्विटी और डेट का जो रेशियो, स्पेसिफिकली डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स वगैरह जो है, उनसे में मेरा कुछ कंट्रोल नहीं है, कौन सा वाला सिक्योरिटी कब ले रहा है, कितना रेशियो ले रहा है। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, एक कॉल आ गया था इसके लिए। हाँ बोलिए। तो मेरा इसमें कंट्रोल कुछ नहीं रहने वाला है। अभी ये जो मॉडल मैं यूज करता हूँ, आई यूज प्योर इक्विटी एंड प्योर डेट फंड्स। मुझे पता है क्या रेशियो मुझे रखना है मेरे क्लाइंट के लिए, ठीक है ना।
तो इसीलिए फैक्टरिंग ये है कि ये टॉप 20% क्लाइंट के लिए मुझे ये करना है, ये मेरा थॉट है, जहाँ पे मैं ये सब एम्बिग्यूटीज नहीं रखूंगा। मुझे पता है लार्ज कैप पास स्पेसिफिकली डेफिनेशन हो गया 80% लार्ज कैप रहने वाला है, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट पार्ट। 20% जो होगा वो तो फंड मैनेजर कॉल रहने वाला है, लेकिन यही चीज है जो मुझे चाहिए कंट्रोल करने के लिए। आई विल बी एबल टू कंट्रोल दिस पोर्टफोलियो मच बेटर इफ आई हैव हाइब्रिड फंड्स। इट मे बी एप्लीकेबल टू क्लाइंट्स हु जिसका पोर्टफोलियो जिसका who maybe in your the remaining 50% तो बॉटम 50% है, अगर इस तरह से आप सोच सकते हो। मैं जनरलाइज नहीं कर, मैं इन जनरल बताने का ट्राई कर रहा हूँ, समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। इट्स नॉट स्पेसिफिकली कि आप इस तरह से ही करो करके, बट डेफिनेटली अगर यू बिलीव इन द हाइब्रिड फंड्स या यू विल हैव टू फाइंड आउट, यू विल हैव टू पुट योर थॉट्स हाउ कंफर्टेबल यू विल बी टू सजेस्ट the hybrid funds because you will be having very less control. So what you may be thinking is कि जो नए क्लाइंट है या जो जिनका SIP या इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली बहुत छोटा है और उनको आप स्टार्टिंग में आप उनको ये हाइब्रिड फंड्स या डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स वगैरह दे सकते हो, जहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यू आर ओके टू लूज सम पार्ट ऑफ कंट्रोल देयर, बट एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट योर डाउनफॉल टू एन एक्सटेंट, राइट। सेकेंड थिंग, जो बैलेंस अभी जो मल्टी कैप वगैरह फंड भी है उसमें भी अपना कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। तो वहां पे भी आप ये सोच सकते हो जो क्लाइंट जिनका SIP वगैरह छोटा है वगैरह है, तो उनको सब कुछ भी देने के लिए मुझे मेरे पास कंट्रोल नहीं है, तो आई कैन गिव देम मल्टी कैप फंड्स, समथिंग लाइक दैट। अगेन यू हैव टू एक्चुअली थिंक थ्रू ऑल दीस थिंग्स, आपको ये सब ठीक से सोचना पड़ेगा, सो दैट इट विल बी बेटर दैट व्हेन यू कम डाउन टू योर products and all those things, when you actually create that product matrix, that is where it will help you understand. ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन है कि अगर ये 1 करोड़ का पोर्टफोलियो, अगर समझ लीजिए कि आप ऐसा है कि क्लाइंट का HNI है और उसका SIP बड़ा 5 लाख का 10 लाख का SIP है, हाँ। तो उस केसेस में हम कैसे ये चीज अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते अगर SIP बड़ा है? एग्जैक्टली सर, आप जो भी रेशियो बोलो, जैसे लमसम आ रहा है SIP या जो भी आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया अभी, इसमें आपको सब कुछ आ जाएगा। इनफैक्ट यू विल बी एबल टू से बाय अपफ्रंट कि आप कौन से रेशियो में वो डालोगे। I'll just share the part. अगर आप ये देखोगे यहाँ पे, ये हमारे पास ऑप्शन है एक एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ पे आपको ये जो रेशियो 90-10 का रेशियो इक्विटी डेट का ब्रॉडली आपको रेशियो मिल ही जाएगा, मुझे क्या रेशियो में डालना है। और यहाँ से भी एक ये पार्ट हुआ, फिर इन द कैटेगरी ऑल्सो यू विल ऑल्सो फाइंड आउट कि रीबैलेंसिंग में SIP में कितना डालूंगा। तो बिकॉज आई हैव द रेशियोज अवेलेबल, जो मैंने पहले से रेशियो बना के रखे हैं, मुझे ऑटोमेटिकली बताएगा कि ये रेशियो में मुझे डिप्लॉय करना है, राइट। इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, ठीक है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट आपका ये सब हो ही जाएगा यहाँ पे। दिस फॉर्मेट विल टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स। ओके राइट, ग्रेट सर, ग्रेट। या थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। मिलिंद भाई, आई थिंक यू विल हैव टू मीट योरसेल्फ। मिलिंद भाई, आपका आवाज बंद है, म्यूट है, आप म्यूट पे हो। ईशान भाई पूछिए अपना सवाल। सर मेरे एग्जैक्टली 3 सवाल थे। सर प्लीज टू बी स्पेसिफिक। कंट्रोल करते जितना कंट्रोल हो सकता है जल्दी से, अभी भूख भी लगी है। तो ये था कि अगर हम ये कर रहे हैं तो इसकी टैक्स लायबिलिटी भी तो क्लाइंट के ऊपर आएगी ना, जो LTCG STG, तो हम आएगी, आने वाली है। हाँ जी, बोले पहले आपका क्वेश्चन बोल दीजिए। तो क्लाइंट इस चीज के लिए कितना एवर्सिव रहेगा और कितना उसको अच्छी तरह से लेगा, वो भी तो डिपेंड करेगा ना इस पे। तो सर इसीलिए आपको फर्स्ट मीटिंग में आपको ये सब क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट द स्ट्रैटेजी। जब आप स्ट्रैटेजी प्रेजेंट करते हो कि मैं इस तरह से रेगुलरली फॉलो करने वाला हूँ, उसमें कुछ ना कुछ टैक्स इम्प्लीकेशन भी आने वाला है, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट is the loss in the portfolio okay or saving tax is okay। एक बात और हम लोग को समझना पड़ेगा, टैक्स आप वही अमाउंट में भरोगे जो जिसमें आपने प्रॉफिट कमाया है, not on the whole thing। but if you allow the just because of loss, just because of tax, you are not going to do the transaction, you are actually allowing the portfolio, complete portfolio to come down, right? तो क्या important है हम लोग को टैक्स भरना। Tax will be only on the profit, not on the whole portfolio, but the loss will be on the overall portfolio. That is more important, right? मेरे हिसाब से। और अगर आप ये पार्ट क्लाइंट लोगों को पहले से ठीक से समझा के रखते हो ना,
क्लियर कट कम्युनिकेशन कर दो, ट्रांसपेरेंट रख दो, तो आई थिंक ब्रॉडली ही विल आल्सो अंडरस्टैंड एंड अलाउ यू टू टेक द कॉल, राइट? हाँ ठीक है, समझ गया। सेकेंडली, अभी पीछे जब ये हुआ था लॉकडाउन जो भी था, इसमें बहुत सी एएमसीज ने कंडक्ट किया, पता नहीं कौन सी रिसर्चेस निकाल के लाए कि जिनका पोर्टफोलियो कभी टच नहीं हुआ, दे आर द हाईएस्ट मनी मेकर्स एंड फलाना फलाना। तो अब आप कहते हो कि हमें रीबैलेंस रेगुलर बेसिस करनी चाहिए, तो हम आपका आवाज चला गया एहसान भाई। अभी आवाज आ रहा है सर? हाँ अभी आया। एंड पार्ट फिर से बोलिए। तो सर मेरा पॉइंट यही था कि अभी पीछे एजेंसीज रिसर्च लेके आई थी, उसके अंदर था कि सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने बनाया जिनका पोर्टफोलियो कभी टच नहीं किया गया। ओके। और हम आपका बैक चेक कह रहा है कि सब की पैसा हमने कुछ एज थी हमारी जो भी जब हमने उसको रीबैलेंसिंग किया। तो अब इन दोनों में से हम मतलब ठीक कौन है, ये कैसे जज करें हम? मैंने आपको पहले भी बोला कि मैंने यहाँ पे ये एक्सप्रेस करने के लिए मैंने सिर्फ एक ही स्कीम लिया था, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एसेट लोकेशन काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। सेकेंड चीज, अभी आप जो बोल रहे हो वो स्कीम लेवल की बात कर रहे हो, तो स्कीम लेवल पे आप रिसर्च के लिए भी आपको प्रोसेस बनाना पड़ेगा। अभी जैसे आप इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी आप बना रहे हो, फ्रेमवर्क बना रहे हो कि आप ब्रॉडली डिप्लॉय कैसे करोगे, वैसे भी आपको उसी लेवल पे सोचना पड़ेगा कि आप रिसर्च करते वक्त आप ऐसे क्या पैरामीटर्स यूज करोगे जिसकी बेसिस पे आप ये सब डिफाइन करोगे कौन सी स्कीम में कभी डालना पड़ेगा। तो ये तो हम लोग को, जब हम लोग ये सब शुरू करते हैं उससे पहले हम लोग को ये सब डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं कैसे काम करने वाला हूँ। तो अगर आपके वो रेशियो के हिसाब से, पर्टिकुलर फॉलो के हिसाब से रेशियो, अगर आप बोलो कि बाय डिफॉल्ट मैं सिर्फ 3 साल वाली स्कीम में ही डालूंगा, मिनिमम 3 साल हो गया है वही स्कीम में डालूंगा, मैं एनएफओ वगैरह में नहीं डालने वाला हूँ, तो अगर कोई अच्छा एनएफओ आया भी और उसने अगले 1 साल 1.5 साल में परफॉर्म भी कर दिया तो भी आप उसमें नहीं डालने वाले हो, राइट? क्योंकि मेरा बेसिक प्रोसेस है कि मैं 3 साल वाले जो मिनिमम स्कीम है उसमें ही डालने वाला हूँ, तो सवाल ही नहीं आता ना फिर तो। राइट। तो स्कीम चल रहा है नहीं चल रहा है, दैट इज नॉट इन योर हैंड्स। कौन सा स्कीम कब परफॉर्म करेगा, आज जो परफॉर्म टॉप पे वो शायद कल बॉटम पे रहेगा, ये हमारा कंट्रोल में नहीं है, बराबर है? बराबर है। बट हमारे कंट्रोल में क्या है कि हम लोग क्या फ्रेमवर्क के साथ में वो स्कीम चूज करने वाले हैं, वो हमारे हाथ में है। तो हम इस फ्रेमवर्क के हिसाब से अपनी एक स्कीम से एग्जिट लेके दूसरी स्कीम में एंट्री भी करवाएंगे क्लाइंट्स को। ऑब्वियसली अगर आपको लग रहा है, सो जैसे मैंने बताया कि अभी ये कैटेगरी मैंने लिया, चलो ठीक है, मैंने एक मिड कैप वाला कैटेगरी लिया। अभी मिड कैप में सपोज मैंने एक्चुअली पोर्टफोलियो में मैंने 3 स्कीम दिए रहेंगे, ठीक है। अभी मेरे को आया कि मिड कैप में से मेरे को पर्टिकुलर स्कीम में से विड्रॉ करना ही पड़ेगा, कैटेगरी लेवल पे मेरे को मिड कैप में से विड्रॉ करना है। अभी 3 स्कीम में से मेरे को कौन से वाले स्कीम में से विड्रॉ करूं, सब में इक्वल करूं या पर्टिकुलर वो तीनों स्कीम में से जो क्लाइंट के पोर्टफोलियो में है उसमें से कौन सी वाली स्कीम में से मैं विड्रॉ करूं, वो तो आप देखना ही पड़ेगा ना आपको जी। ये जो फ्रेमवर्क मैंने अभी तक बताया है आपको, दिस इज ओनली ऑन द कैटेगरी लेवल पे मैं बता रहा हूँ कि भाई आप डायरेक्ट स्कीम लेवल पे जंप करते हो। नॉर्मली क्या होता है, बहुत लोग हैं हम लोग में से जो सिर्फ डायरेक्ट स्कीम परफॉर्मेंस देखेंगे, बोलेंगे कि स्कीम चेंज कर देते है ना, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि वो स्कीम कहाँ कौन से कैटेगरी से थी, कहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है, हमारी स्ट्रेटेजी में क्या फर्क पड़ने वाला है। So that is where the differentiation will come into picture. ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, hope I have answered your questions. Yes, yes, thank you so much. Thank you. And we are taking last question from Rohit ji from Goa. रोहित सर अपना सवाल पूछे सर। हाँ, गुड इवनिंग सर, थैंक यू तिवेश जी, बहुत अच्छा सेशन था आपका। गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपने ये दिखाया कि एक्सेल शीट में कि हम अगर 10 साल तक कुछ नहीं भी करें तो भी मोटा मोटी रिटर्न उतना ही बैठता है। सब्जेक्ट टू मैटर था, अभी ये स्कीम के हिसाब से आ गया, ये आ गया है, हो सकता है आ गया है, शायद वो जो ऊपर वाला पार्ट था वो शायद लोअर भी हो सकता है। अच्छा, तो मतलब मेरा यही क्वेश्चन था कि जब अगर मोटा मोटी सेम रिटर्न आता है तो क्यों रीबैलेंसिंग करें हम? सर सबसे पहले मैंने वो टाइम पे भी बताया था कि क्या आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है? नहीं, मुझे भी नहीं मालूम है, तो मैं क्या करूँगा आगे के लिए, क्या करूंगा मैं? और जैसे मैंने बोला, ये स्पेसिफिकली आप टॉप 20% क्लाइंट के लिए सोचो
इसका सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है आपके पास, उसके लिए आप कुछ भी नहीं करने वाले हो तो वो क्यों रखेगा आपके पास पैसा? ठीक बात है। रिमेम्बर हम लोगों ने स्लाइड में देखा था आगे, इसीलिए मैं सब बेसिक से लेके आया था, राइट, कि व्हाई ही शुड बी विथ यू, व्हाई दैट टॉप 20% क्लाइंट शुड बी रिटेन, व्हाई ही विल बी विथ यू। ठीक बात है, राइट। अगर आप कुछ करने वाले ही नहीं हो, कुछ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जबरदस्ती एक्शन लो, लेकिन स्ट्रैटेजिकली अगर एक्शन ले सकते हो तो वो इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, अगर कुछ करने वाले ही नहीं हो, तो स्कीम परफॉर्मेंस आपने नहीं निकाली है, परफॉर्मेंस स्कीम ने दी थी, तो डायरेक्ट प्लान में जाके ले लिया तो क्या फर्क पड़ेगा उसको? ठीक बात है ना सर? थैंक यू सो मच। आपका एज एन एडवाइजर हमारा वैल्यू एड क्या हुआ उसके लिए कि हम लोग उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी बना के रखा है और वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वहां पे तो हमारा वैल्यू एड बनता है ना उसके लिए। करेक्ट। इसीलिए तो उसको मेरे पास रहना चाहिए। गॉट इट सर। एक फॉलो अप सेशन इसके बाद का थोड़ा सा और चाहिएगा ऐसा लग रहा है। नहीं रोहित जी हम लोग दिवेश भाई के वर्कशॉप में साथ में जाएंगे। यस थैंक यू सो मच। कराइए। When he design his workshop, तो जैसे वो बताएंगे we will attend it together. पक्का। थैंक यू सो मच। ओके। Depending on the interest from everybody, I will definitely think of actually having a workshop. सर वो चिंता मत करिए, आपने ये दिखा दिया ना, इंटरेस्ट जग गया सब में। सर लोग जुड़ते जाएंगे, कारवा बनता जाएगा सर, हो जाएगा। डन। थैंक यू सो मच। सो अगेन विरल भाई ने भी बहुत टाइम से हाथ ऊपर किया था दिवेश भाई, लेकिन विरल भाई शायद चले गए, तो अल्टीमेटली उनका शायद क्वेरी का जवाब भी मिल गया होगा, तो उन्होंने हाथ नीचे कर दिया है। ओके, थैंक्स अ लॉट टीम। और दिवेश भाई आपका सही दिल से शुक्रिया कि आज एक कुछ अलग स्ट्रेटेजी आपने हमको दिखाई है, और सारे एडवाइजर्स मैं चाहता हूं कि ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी अपने खुद के लिए भी बनाए, अपने टॉप 20 क्लाइंट्स के लिए भी बनाए। अगेन जो मैंने भी फेस किया है ये प्रॉब्लम के बॉस मिलिंद भाई आपने कुछ किया नहीं अभी तक, तो अगेन है ना, मैंने भी क्या किया, मैंने 1 लाख के फंड से निकाल के दूसरे लाख के फंड में पैसा डाल दिया, तो क्लाइंट खुश हो गया कि बॉस मिलिंद भाई ने कुछ तो काम किया। लेकिन अभी ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी मिल रही है आज हमको, तो लेट अस यूटिलाइज इट एट प्रॉपर वे। एंड थैंक यू वेरी मच दिवेश भाई। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने जो फेसबुक पोस्ट है उसके ऊपर आज के सेशन का एक फीडबैक डालिएगा, जिससे हमको आगे और इम्प्रूव करने में हेल्प मिले। थैंक यू दिवेश भाई, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर वर्कशॉप। Thank you Milind bhai, thank you Arthamitra Gurukulam group for giving me this opportunity to share with you all. Thanks a lot. My pleasure sir. Thank you all. दोस्तों I will be happy to answer anybody if they have some questions separately. We can always discuss it out. I will be happy to answer. Please share your contact details. Yeah, one second. I'll just share. दोस्तों you all can take number वो share कर रहे हैं अभी। थैंक्स ऑल। कल और एक फैंटास्टिक सेशन में मिलेंगे। कल कौन आ रहा है, दो क्लैश हो रहे हैं कल, देखते हैं कल कौन आ रहा है। विल शेयर इट सोन। या हियर इज द स्लाइड, यू कैन व्हाट्सएप हिम। Yes, I would be happy to reply. दिनेश भाई मेरे को ऐसा बोलना चाहिए कि उनको ट्वीट कीजिए तो ट्विटर पे जवाब देंगे। हाँ सर, बस अभी ट्विटर पे भी एक्टिव नहीं हूँ अभी, तभी आप ट्विटर पे यस अभी आ जाऊंगा अभी आ जाऊंगा। नेम ऑफ हिज फर्म इज प्रोफेशनल डिग्रीज। या इस दिवेश शायद नाम ही काफी है सर। नहीं नाम सबका लिखा। Name of the firm, professional degree is MTech Chemical Engineering and I have done CFP. Name of the firm is Two Worth Consultants. Don't worry, you will not find too much things on the social media or anywhere if you actually search right now. I am thoda averse of the social media part. Sir, we have but I am still there on the WhatsApp currently. Hidden gem. Sir, he is hidden gem. तो कहीं छुपे हुए थे, हमने ढूंढ के निकाला है। So let's conclude the session. Hope you all have enjoyed the session and मुझे आशा है कि आप सब इसको implement करेंगे कहीं ना कहीं और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। Yes. Yeah. Thank you very much. Thank you sir. Yeah. Thank you all. And keep
keep giving on your suggestions so that we can improve. आपको और कौन से सेशन चाहिए, क्या चाहिए? अगर आप किसी से ऐसे दोस्तों से connected है, please let us know. Ask them to connect us, and we will have great learning together. Thank you. Divesh bhai, thank you again. Yes, Closing the meeting, sir. Yeah. Thanks all.